Mr. Gulati and Mrs. Gulati, they are always there for all the sessions. Ma'am, they are Vanshit Gulati's parents, Garima ma'am. Manya Gulati's and Vanshit Gulati's parents. They are always there on time for all the things. Welcome, everyone. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Welcome. Thank you for your participation in the introductory session. So we can take 2 more minutes. I think everyone's just logging in. Yes, yes. We'll have them log in. Meanwhile, others could also introduce themselves. आप सब लोग अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लें प्लीज. जैसे अंजुला मैम ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, वैसे आप and you know what you do if you're a parent and आपकी क्या expectations हैं, so that we get to know each other better. हाँ जी, Pankaj ji, Utkarsh ji, I think that's. So if you would like to introduce yourself, Shyam Sundar ji. Good afternoon, ma'am. This is Pankaj Sharma, Senior Coordinator, Presidential School, ma'am. Wonderful. So आपकी क्या expectations हैं इस workshop से? मैम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है मैम, और आई एम जस्ट वेटिंग दैट कि जो वर्कशॉप होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग वे में होने वाला है. Yes. Good. I'm so glad that you know आप सबको गरिमा मैम ने introduce किया, and your love and your trust on her that जो भी workshop में होगा will be contributive in nature. I think that speaks a lot about. Is my voice audible? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Is my internet okay? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, so I think that speaks a lot that you know you've come to this workshop with an open mind, and आप में से बहुत सारे लोगों की is it mind? Is my voice coming clearly or is it cracking? It's clear. It's cracking, ma'am. गरिमा जी आपको clearly आ रही है या बीच में से crack कर रही है? Hear you clearly. You can hear me clearly. Okay, all right. Thank you. Hanji, so I'll introduce myself meanwhile till the time, or should I wait for more people? आप जैसे बोलो. I think we can start because you know at different levels people are connecting, so maybe they're having internet issues, and as they join in, even at the school, Shamji, can you just check where everyone's held up, because at least from school different. The students haven't come, then we'll wait. If the students are not seated yet, we'll wait. Today the school is not functional. Start कर दो भैया, शुरू हो गई. Session begins Wednesday, basically. Yes, yes. The students are meant to join in from their homes since it's an introductory session. And from Wednesday, 8:15 onwards, they will all be joining from the school itself. Okay, so from today, they are at their home that they're joining. Yes, yes. I could start by introducing myself then, you know, since everybody's joined in individually. Okay, so very good afternoon, everyone. आप सबका welcome. मेरा नाम Annie Munjal है, and I am based out of Delhi. And आप में से बहुत सारे लोगों की age, experience मुझसे कहीं ज़्यादा है. तो मुझे personally लगता है that you know I have a lot to. I'll just disable the unmute so that yes. So आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा age, experience आपके field में. A lot of you are teachers. आप लोगों ने बहुत ज़्यादा formal education भी कहते हैं ना प्राप्त की होगी to be where you are, and you all are really masters of what you are doing. Similarly, जो students हैं different age groups के are going to be joining this session, and they are also wonderful at their job of learning. However, आज का जो हमारा ये session है, and जो हम लोग Wednesday से 30-day journey के अंदर we will be one second. Yes. So जो Wednesday से हम journey start करेंगे. So it's very important to understand कि हम अगर अपना time देने वाले हैं, effort देने वाले हैं, first of all, what's in it for me? है ना, मतलब हम कुछ भी अगर invest करेंगे तो what is the return that I'm going to get out of myself for myself? So I'll introduce myself थोड़ा. So I am Annie Munjal. I am 24 years old. I'm based out of Delhi.
I've in my personal life मैंने अपनी schooling DPS मथुरा रोड दिल्ली से complete की है, and I've completed my graduation in commerce from Delhi University. I've also completed my post graduation from the Guru Gobind Singh College of Commerce. So study wise, that's what I've done. Professionally, I am a wedding planner. I plan weddings for people, and uske saath hi saath we have a मेरा maternal side of business is into makeup and hair academy, so we teach people how to do that. So that is my career and work wise what I do. Personal life mein, I live with my family. I have my mother, my father, my brother, me, and we live in a big joint family, like hamare taya ji, his family, my dadu dadi, my chachu chachi and his family. So we are about 17-18 people that stay together. And I love each and every one of them, staying in this such a big bundle. Everybody has their own ways of life. There are ups and downs. So this is a little about me, introductory wise. And the reason, so आज जो आप इस session में आए हैं, so the context of this is to know about, जैसे session का नाम भी है, is to bring magics into your life. To make your life magical. आप अपनी जिंदगी को जादुई मैजिकल सिर्फ बोलने के तौर पे नहीं, मगर सचमुच in every area of your life. So मैं ये इसलिए शेयर करूंगी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कहते हैं ना इसको पहले इम्प्लीमेंट करा, इसको यूज किया, इसके बेनिफिट्स देखे. So I'll start with my story and we will be talking about this. आपने हो सकता है ये टर्म्स पहले सुनी हो सकता है पहले ना सुनी हो. So we'll be talking about this thing called law of attraction. Law of attraction and manifestation. So आप में से किसने सुना है इसके बारे में पहले? How many of you know about what is law of attraction or what is manifestation? ये शब्द पहले सुने हैं या नहीं सुने? आप चैट में yes या no लिख सकते हैं. नहीं सुना तो कोई नहीं, हम जानेंगे. और अगर सुना है तो आप शेयर कर सकते हैं कि क्या जानते हैं आप इसके बारे में. अनम्यूट कर सकते हैं आप, अपना नाम लें, बताएं क्या सुना है, क्या पता है आपको इसके बारे में. Yeah, so Garima ji, would you like to share what you know about it? I think in simple terms, because good afternoon, everyone. Law of attraction, I think very few people are saying that they have heard about the term. But इसको अगर हिंदी में और simplify करें, क्योंकि हम सब बॉलीवुड फैंस हैं, सब मूवीज देखते हैं, तो वो एक लाइन है शाहरुख खान की मूवी में जिसमें कहते हैं कि कायनात में किसी भी थॉट को बहुत अगर शिद्दत से कायनात में दिया जाए, भेजा जाए, तो कायनात रिस्पॉन्ड करती है और वो आपका शिद्दत वाला जो थॉट है, इट मेक्स इट हैपन फॉर रियल. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट पावर ऑफ थॉट, योर डिजायर, योर गोल, दैट when is passionately sent out in the universe, it boomerangs and comes back manifold times to you, bringing you not only what you desire but many more benefits along with it. So I feel that's law of attraction. Which movie was it? Does anyone recall? Om Shanti Om. Yes, of course. Thank you for sharing. Thank you. Hanji, so we will talk, and thank you so much Garima ji for quoting it with an example. हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे. अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. I'll be more than happy. So the reason why I'm sharing this is because जैसे आज majority of the students, teachers, तो मेरी लाइफ में जब मुझे पहली बार law of attraction के बारे में पता चला था, मैं भी करीब 12 साल की थी. अभी मैं 24 साल की हूँ, तब मैं 12 साल की थी. एंड जैसे आज आप लोग ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो मैं भी जब बची थी तो मैंने भी एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर मुझे इस चीज के बारे में पता चला था. So a little about myself. I was a very average student. I used to get B pluses, B minuses in my school के जो papers होते थे, FAs होते थे. And I used to think ठीक है, normal है, मतलब इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, but ठीक है, it's going how it's going. And then I remember मैं 5th class में आई थी, and मैं अपनी मम्मी के साथ, हमारी PTM थी, हम उसमें गए थे. And there was a child who was sitting with his parent, and he was just before me. And हमारे जो टीचर थे ना, वो उसके लिए तारीफें कर रहे थे. And मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया उसने? And I was shocked to see that उस बच्चे ने ना हर सब्जेक्ट में
इंग्लिश A plus, हिंदी A plus, फ्रेंच A plus, ये A plus, फाइनल एग्जाम A plus, हर जगह A plus, A plus, A plus. And I was shocked कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में जिनका हर सब्जेक्ट में A plus आता है. I was in 5th grade, very young. And कमाल की बात है तभी मैंने ये वर्कशॉप अटेंड की. एंड जो रूल्स जो लॉज इसके अंदर सिखाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि अब मैंने पढ़ाई करनी ज्यादा शुरू कर दिया कुछ, मगर जो रूल्स जो लॉज अभी हम बात करेंगे, आई अप्लाइड दैट. एंड हमारे स्कूल में ना एक चीज होती थी जिसे हम स्कॉलर बैच कहते थे कि यू नो इफ यू अचीव सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स यू रिसीव अ स्कॉलर बैच फ्रॉम द स्कूल. सो आई मेड इट वेरी क्लियर कि अगर 6th क्लास में जाना है ना तो आई वांट टू बी अ स्कॉलर इन माय लाइफ. I didn't start studying more, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर using these laws, to my surprise, in 6th grade I became a scholar and I was very young. तो मुझे लगा अरे वाह यार ये तो बहुत कमाल है, मैं सचमुच जो अपनी लाइफ में चाहती थी वो मिल गया. Then I grew older. Then मुझे लगा कि चलो यार मैं अपने स्कूल में, it's a very big school, बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में, DPS मथुरा रोड में बहुत सारे होते थे. मैंने कहा यार मैं ना अपने पेरेंट्स को नाज कराना चाहती हूँ. I want to become the head girl of my school. And there were a lot of people competing. But then again, using these laws, जिसके बारे में हम आज and you know following days में बात करेंगे, मैंने कहा यार मैं हेड गर्ल बनना चाहती हूँ. आसपास के लोगों ने जो बोला सो बोला, वो चीज भी सच हो गई. So that gave me more confidence कि यार ये सपना भी सच हो गया. Then उसके बाद कॉलेज आया, कॉलेज एडमिशंस में यूज किया, वो भी सच हो गए. Then उसके बाद अपना करियर सेट करना था. सिमिलरली जो मेरे पियर फ्रेंड्स थे, दे वर कंफ्यूज्ड कि लाइफ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उतना कमा पाएंगे, जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी. बट मैंने इन रूल्स को अप्लाई किया एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड जितना जैसा काम करना चाहती थी, जिस तरीके के लोगों के साथ काम करना चाहती थी, जिस तरीके के पैसे कमाना चाहती थी, वो सब भी आ गया लाइफ में. So the reason why I'm doing this workshop, you know, we are having this workshop is because मुझे अपनी लाइफ में इन लॉज को अप्लाई करके बहुत मिला. नॉट जस्ट मी, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, पेरेंट्स ने अप्लाई किया अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चे पहले सुनते नहीं थे, they use these laws and just like magic their kids became, you know, very obedient and loving. बच्चे जिनके मार्क्स नहीं आ रहे थे, मार्क्स आने स्टार्ट हो गए. कॉलेज के एडमिशंस में प्रॉब्लम थी, उसके अंदर हो गया. कभी कभार जैसे मम्मी और बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि मम्मी मेरी बात नहीं सुनती है, इन लॉज को अप्लाई किया तो मम्मी के साथ इतना हेवनली रिलेशनशिप बन गया. काम के अंदर देयर आर पीपल जिनके बहुत टाइम से प्रमोशन पेंडिंग थी, हो नहीं रही थी, इन रूल्स को अप्लाई किया, मिल गया. सो इट एक्चुअली वर्क्स लाइक मैजिक. बट क्या होता है ना, इसको इस्तेमाल करने के लिए इसके रूल्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है. तो आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन एक्साइटेड है इसके बारे में और जानने के लिए? You will get very nice, very nice. I see all the wonderful students raising. Thank you so much for your eagerness to know more about this. ठीक है जी. So I'll also share screen. If you have any questions, please feel free to ask. है ना? और आपको ऐसे लग सकता है कि यार चलो एनी दी तो अभी मिल रहे हैं, you can address me as एनी दी. ठीक है कि एनी दी से तो अभी मिल रहे हैं यार, बट इसके बारे में तो हमने हो सकता है पहले कभी सुना ही नहीं है. कौन है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या है मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज द टेस्टिमोनियल वेदर दिस वर्क्स और डजंट वर्क, है ना? सो I will show you also the people who have really, जिनको हो सकता है आप भी जानते हो अपनी लाइफ में, whether these are business people, top business tycoons like, you know, 1,000 crore company owners, और whether it is आप बॉलीवुड में जाओ, उसके जो टॉप के लोग हैं जिन्होंने जीरो से अपना काम शुरू. चलो बॉलीवुड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? So somebody tell me, जिसने जीरो से स्टार्ट किया, didn't come from a, you know, filmy background, and they built a name for themselves, and you know आज की डेट में you call them a top person. Any names who you think उन्होंने they've created a benchmark for themselves? शाहरुख खान. हाँ जी, शाहरुख खान, yes, very nice. और बताओ some other people that you know who started. Rajnikant, yes, wonderful. और बताओ. कुमार. Rajkumar, yes. Amitabh Bachchan, yes. Amitabh Bachchan, the father was there, no? His father was there, but yes, he had that. Very good. Sushant Singh, very nice. Akshay Kumar, absolutely, yes. और बताओ. Females में जो अभी कोई हॉलीवुड में बैठा हो, कोई और आप उसे जानते हो? जैसे रणवीर सिंह came from zero,
And in no time, with some movies, he created his complete benchmark. Anushka Sharma didn't come from a background. Anushka Sharma started like that. You know? So, yeah. So, 1 second. I'll just... 1 second. 1 second. I'll show you a video of these people. And I hope आप सब लोग अपने साथ पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं, क्योंकि आपको आज के उसमें जो भी देखो, and this is not going to be a me talking workshop, ठीक है? This is not a Annie आई थी एक, उसने कुछ अच्छी बातें की थी, सुनने में बहुत अच्छी लगी थी. This workshop will not be about that. This workshop is about you and your dreams and you making your dreams come true. फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी 10 साल के हो या 50 साल के हो, या आप अपना करियर शुरू कर रहे हो या आप रिटायरमेंट की स्टेज पे आ गए. Does not matter. आप इन रूल्स को जब से सुन के समझ के अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, ये आपकी लाइफ में कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंटली मैजिक्स लाना स्टार्ट कर देगा. So I request each and every one of you to sit on the edge of your seat and make sure your back is straight, ठीक है? Because that makes you much more attentive. So yes, let's begin. So welcome to this workshop. Enter the world of your dreams. आपके सपनों की दुनिया. And आज जो आप सीखने जा रहे हो, अगले 30 दिन में जो आप सीखोगे, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ अभी अप्लाई करना है. आप कल को आज अजमेर में हो, कल को आप न्यूयॉर्क जाओ या ऑस्ट्रेलिया जाओ या किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाओ. This will come handy for you. ठीक है? So yes. Let's see some people and what they have to say. The girls are screening your name. You're the new pin-up boy. And in 6 months, you're on my list of India's most desirable. So what's going on in your mind right now? It's amazing. I have absolutely no time to pause and take a look at the amazing things happening around me. Everything's just happening so fast. Boom, boom, boom. You must have written a dream script for yourself for your success as a star. Has it superseded that script? It has. I'll tell you a funny story. For my 23rd birthday, my sister, instead of candles on my cake, had made these small pictures, and she had morphed my face onto posters of Yash Raj films. Shah Rukh sir's face was removed and my face was put on a poster of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, and she, I think, had read this book called The Secret. That's right. Yeah, and the power of positive thinking. And so I took those pictures of the cake and I pinned them up in my room. And lo and behold, it came true. So जब मैंने सीक्रेट पढ़ी, I can tell you it's something very amazing. पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि लाइफ में मैंने जो भी किया है, I did according to the book. सिर्फ एक दो एवेन्यूज में, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, mistakes are a part of life. तो एक दो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मैं सीक्रेट को अप्लाई नहीं करती थी. और जब से मैंने वो भी शुरू किया है, I think I'm a very happy person. In a way, God has blessed me, and I'm most of the times, I'm not like inhuman, but most of the times I'm happy. So you must follow me. So इसके अंदर जैसे अभी रणवीर सिंह and Bipasha Basu shared about their lives. I hope आप लोगों ने उनकी शक्लें कभी देखी होंगी big screens पे. So do you see they're referring about this thing called the secret, है ना, कि what is this secret जिसको उन्होंने भी use किया. अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी आप बस सुन लो, ठीक है? Then there was this, चलो आगे देखते हैं. All this singing and dancing and making dad dance. I mean, the family must have said, Frida is surely going to be a star. In a way, I think my mom, more than my dad, saw it coming. I wouldn't say a star, but I would say just an actor, a working actor. You start preparing in some way. Yeah. I never went to an acting school. I just went out there, just watching films, reading up stuff about people, actors. You just, autobiographical stuff. I think you did other things too. Like, what did my sister tell you?
preparing for the future. Do you want to watch? Okay. You know what? Frida loves standing in front of the mirror and pretending she was receiving the Oscar and asking herself questions and answering them. It's funny because one day she was doing that and she was standing in front of the mirror and I happened to walk in and Frida was really embarrassed. She was like, "Why did you come in?" And I was like, I was just laughing. It was funny. But she's practiced her Oscar speeches and she's received awards and, given her thank you speeches all in front of the mirror, even before all of this happened. So embarrassing. That is the power of dreams. Yeah. And I want you to remember, everything you imagine is possible. It's out there. All you have to do is go and get it. She imagined it and she made it happen. Right? So, ये फ्रीडा पिंटो आप में से हो सकता है किस को पता है फ्रीडा पिंटो नाम से कोई एक एक्टर आई थी कुछ साल पहले एक मूवी आई थी है ना स्लमडॉग मिलियनेयर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो एक्टर्स बनना चाहते हैं है ना कितने सारे लोग हैं जो न जाने बॉम्बे जाते हैं कहाँ जाते हैं कि अच्छा नहीं आई वांट टू बिकम दिस नॉर्मली लोग क्या कहते हैं अरे नहीं अच्छा ऑस्कर है तुम्हारा सपना लेना तो पहले तो फिल्म फेयर जीतना पड़ेगा ये करना पड़ेगा है ना लोग कहते हैं अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है अरे इतने सारे लोग हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं उन लोगों को आजकल ऑस्कर नहीं मिला तुझे कैसे ऑस्कर मिल जाएगा You might have heard people talk things like that, है ना आप जिस environment में रहते हो नॉर्मली लोग वैसी बात करते हैं अगर आपका सपना है कि ऑस्कर मिल जाएगा बहुत कम लोग होंगे जो आपको कहेंगे आप में से कौन जानते हैं वैसे फ्रीडा पिंटो So she started off as a model, but उसको अपना ड्रीम क्लियर था कि अच्छा नहीं मेरे को ये फिल्म फेयर आईफा इसमें पढ़ना ही नहीं है मेरा विजन क्लियर है ऑस्कर because of which she did this movie which was also known as Slumdog Millionaire. Yes, so her first movie was Slumdog Millionaire and that led her to her dream of winning an Oscar. So the reason why I'm showing all of this is because देखो आपका सपना क्या है पहले तो इसको लिखना बहुत जरूरी है जैसे इन्होंने भी बोला ना what is your dream आप चाहते क्या हो आपकी what is the vision that you have so firstly I hope आप सब लोग अपनी pen and paper लाए हैं so just write down on a fresh paper what is my dream कैसे सच करना है क्या सच करना है वो सब हम बात करेंगे but firstly just ask yourself okay what is my dream in the area of my career in the area of my relationships in the area of my health in the area of my co-curriculars अगर आप टीचर हो तो in the area of my further जो भी आप करना चाहते हो आगे पढ़ना चाहते हो आगे पढ़ाना चाहते हो जो भी आपका ड्रीम है अगर आप पेरेंट हो तो आपका हो सकता है कि अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके या फिर आपके फ्यूचर मनी को लेके है ना मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना कि आप अपने उसके लिए करना चाहते हो whatever your dream is first thing is write down ठीक है There was this one time I was driving back from Yashraj Studios and I got the Nizami to me and I was driving back and I couldn't drive anymore because I was crying. I was so happy I was crying. So I stopped the car and I pulled over and I called my mother and I told her that I got this film. And you know what my mom told me? There's this turtle that used to be there in my living room. The turtle and you put like a wish inside that turtle and you shut it. And when your wish comes true, you take it out. So she never told me about this. But when she came down after she heard that I got the film, she opened that and she showed it to me and she'd written it there. I hope my daughter stars in a Yash Raj film. I swear. It's unbelievable. So I think somewhere she always wanted me to be. She'd said that she'd written this long ago. That one thing for my brother, one thing for me. As the brothers think come true as well. When I auditioned for this film, I was reading this book called The Secrets. Oh, The Secrets. And it was just, it said something like, if you keep thinking about it, it's going to have positive thinking. Yeah. When a film starts, the logo of the film comes, Yash. I was watching that logo the whole time. I just keep watching that again and again. So when the film started and that played first, I was like, wow,
this is actually happening. Shah Rukh Khan introducing Anushka Sharma. Oh God. You need to decide because it must have been a very important decision for you to leave your city, your family, and come to a new city and want to make a life in a profession which is so unpredictable. You know, in my first film, when the very famous dialogue which says, if you really, really want something in your life, you send that message out into the universe and it all happens. So I think it all just automatically fell into place. One point it felt like a dream because there was this phone call that I got. And I come to Bombay and I meet Farah. That itself was like, oh my God. And then she offers me a film with Shah Rukh, and she says, if you're really good, I'll have to screen test you, I'll have to audition. If you're really good, I'll cast you opposite Shah Rukh. If you're not, I'll have to cast you opposite someone else. I can't tell you who that actor is. So I remember going to Shah Rukh's house and meeting him, and then Om Shanti. Yeah. So देखो अभी जो हमने ये वीडियो देखी is just because जो हम बात करने जा रहे हैं, जो हम आज बात करेंगे, जो हम अगले 30 दिन पे बात करेंगे, that is not just कि एनी ने बोला तो हम मान रहे हैं. But all the people who've created certain benchmark in their field, whatever their field is. Like recently, I met this gentleman. He received the Padma Shri Award. This last Monday, he received the Padma Shri Award. And, he's from Surat, one of the biggest, he's a diamondaire. And I asked him, what is your secret of, creating this whole empire in your lifetime? He simply said, I used the secret. He said, मैंने तो अपना हेलीपैड बनाया, हेलीकॉप्टर मुझे खुद मिल गया. So he said, I've set my whole business based on this secret. So आप जो आज बहुत सारे लोग हो सकता है पहली बार इसके बारे में जान रहे हो, it is something that can really create the life of your dreams. आपकी जो भी सपने. So who all are excited? कौन चाह रहे हैं यार मुझे भी चाहिए अपनी लाइफ में ये. I also want to make my life this level of magical and it's very easy. कमाल की बात है, इतना आसान होता है ना इसको यूज करना. चलो अभी हम जानेंगे कैसे करना है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, अभी हमने बॉलीवुड की वीडियो देखी. आप लोग बाद में ना यूट्यूब पे देखना चाहो तो हॉलीवुड में जैसे विल स्मिथ नाम से एक एक्टर है, लेडी गागा नाम से एक एक्टर है, ओपरा विनफ्रे नाम से एक एफ्रो अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी है. अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो कॉनर मैकग्रेगर नाम से एक रेसलर है. इन सब की आप वीडियोस देख सकते हो. जिम कैरी नाम से एक हॉलीवुड एक्टर है. ये सब लोग शेयर कर रहे हैं कि वो सचमुच अपनी लाइफ में आज जो भी बने हैं वो इसी के थ्रू बने हैं. तो आप सब लोग अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर आप अपना एक असाइनमेंट लिख लीजिए, which is to watch this movie called The Secret. आप YouTube पे डालेंगे ना The Secret movie तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी. आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊं, तो आप ये अपने एंड से देख कर आइएगा, हिंदी में या इंग्लिश में, जिसको भी आपको कंफर्टेबल मिले. यूट्यूब पे आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी. ये आपका आज का होमवर्क नंबर 1 है. 1.5 घंटे की मूवी है, 90 minutes, but it will give you much more clarity in terms of how this whole law works, and आप इसे अपनी लाइफ में किस किस तरीकों से यूज कर सकते हैं. ठीक है, so this is first thing. Now this is the law of attraction. Law of attraction is basically आप जो सोचते हैं, आप जो फील करते हैं, आप जो बोलते हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल वही बन जाती है. अभी मैं बहुत सिंपल शब्दों में पुट कर रही हूँ. ठीक है, आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, आप जो बोलते हैं, आपकी जिंदगी बिल्कुल वो ही होती है. That is what manifests into reality into your life. ठीक है, this is how the law works. अब मैंने आपको बोला था law of attraction and manifestation. तो अब manifestation क्या होता है and manifestation काम कैसे करती है. ठीक है, normally 95% of the people of the world अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं. ये यहाँ पे खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए पे आप खड़े हो, पॉइंट बी पे आपके सपने हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा सपना है कि मेरे को, अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ तो मेरे सपने अब मार्क्स से बड़े हो गए. आपका सपना हो सकता है कि मैं मैथ्स में अभी मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, मेरे 80 आ जाए, या मेरे 80 आ रहे हैं, मेरे 100 आ जाए. जो भी आपका सपना है. आप बास्केटबॉल खेलते हो कि यार अभी मेरी 10 में से 5 शूट्स कन्वर्ट होती है, अब मेरी 10 में से 9 कन्वर्ट हो जाए. जो भी आपका सपना है. ठीक है,
तो अभी आप फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए पे खड़े हो एंड पॉइंट बी आपका ड्रीम है, जिस भी एरिया में आपका ड्रीम है। नॉर्मली क्या होता है, आपके और आपके सपने के बीच में ना थोड़ी थोड़ी रुकावटें आ जाती है। जैसे आप चाहते थे कि मैथ्स का पेपर आप क्लियर कर लो, बट हो सकता है आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई, है ना, किसी की तबीयत खराब हो गई, आपके ट्यूटर की बातें आपको समझ में नहीं आने लगी, या फिर आपको कोई डिफिकल्टी आ गई, या फिर आपको नींद आने लग गई, है ना, डिस्ट्रैक्शंस। तो क्या होता है, आपको और आपके सपने तक आपको पहुंचने में समय लग जाता है। यू नो, यू माइट इन द एंड बीच में थक भी जाओ, यार मैं आई एम गिविंग अप, यार नहीं आ रहा मेरा सपना, यार बहुत दूर है, दिख भी नहीं रहा है। नॉर्मली 95% ऑफ द पीपल दे लिव देयर लाइफ लाइक दैट, है ना, कि सपने तक पहुंचने में रुकावट आ जाती है, या देयर आर सम ट्रैफिक। जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं, ट्रैफिक इज देयर। हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स इज, वो जो ये ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक हटा देती है। जो बीच में आपको रुकावटें या डिस्ट्रैक्शंस या अनवांटेड सिचुएशंस आ सकती थी, उसने उसको हटा दिया। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर आप ट्रैफिक वाली सड़क पे अपनी गाड़ी चला रहे हो तो हो सकता है आप 10 की स्पीड पे या 20 की स्पीड या 40 की स्पीड पे चलाओगे, और यही अगर आपको खाली सड़क मिल गई तो हो सकता है आप 100 की स्पीड पे भी चला लो, है ना, तो यू विल रीच योर डेस्टिनेशन मच मच फास्टर। That is how manifestation works. Simple. That's how manifestation works. वो क्या करती है, वो रास्ते का जो ट्रैफिक है ना, वो हटा देती है, मगर गाड़ी आप ही को चलानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि नहीं भाई मैं सो रहा हूँ, मैं सो गया हूँ, नहीं चलेगा ना। अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे हो तो उसका एक्सेलरेटर दबाना, इंजन दबाना, गाड़ी चलाना, वो वाले काम तो आपको करने पड़ेंगे। बेटा, रास्ते में जो रुकावटें या कहते हैं ना चीजें आपको रोक सकती थी, वो आपको अब एक स्मूथ राइड मिलेगी। सो दिस इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? अभी तक जो हमने बातें की उससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर अबाउट दैट? ऑल क्लियर? I've created these slides, you know, in a very very basic format कि एक केजी के बच्चे को भी समझ में आ जाए कि ये जो हम बात करने जा रहे हैं ये किस बेसिस पे काम करेंगे। Any questions? All clear? बढ़िया? Okay, good. Thank you. Okay, so next we are going to talk about, yes, now we are going to talk about your dreams. We are going to talk about your dreams, your desire list. So I want you to take some time. ठीक है, आपका आज का सेकंड असाइनमेंट मैं बता रही हूँ, which is to prepare your dream list. Your second assignment is to prepare your dream list, desire list. आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, ठीक है? अच्छा, एक और चीज मैं ना सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। नॉर्मली हमें क्या लगता है कि मेरी ड्रीम लिस्ट इज जो चीजें मुझे चाहिए, बट एक्चुअल में ना हमारी ड्रीम्स दो तरह की होती है। हमारी ड्रीम्स दो तरह की होती है। एक होती है कि ये मेरे को चाहिए और ये मेरे को चाहिए चाहिए, और एक होती है कि ये मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं फियर, या यू नो ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रीम हो सकता है कि मेरे को सो एंड सो पेपर में सो एंड सो मार्क्स चाहिए, और मेरा बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैं फेल ना हो जाऊं, है ना, या मैं जॉब पे जा रही हूँ या स्कूल पे जा रही हूँ, तो मेरे को हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, तो इसको हम थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं। आप में से किस किस ने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप सुबह उठे, फॉर एग्जाम्पल आपका अलार्म क्लॉक नहीं बजा, या जो भी आप लेट उठे, आप बिल्कुल एंड मोमेंट पे उठे, एंड आपके दिमाग में चल रहा था यार मैं लेट ना हो जाऊं, यार मैं लेट ना हो जाऊं, आज बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मैं लेट ना हो जाऊं, एंड यू एंडेड अप बीइंग लेट। हैज इट एवर हैपेंड? यस, गुड। आपने किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था और आपने सोचा यार मेरे स्किन पे, बस अभी स्किन बहुत अच्छी है, स्किन पे दाने ना आ जाए, यार पिंपल ना आ जाए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पे जाना है, एंड पिंपल आ गया। हैज इट एवर हैपेंड? यस, ओके। सिमिलरली आपने देखा होगा, सो यू नो फॉर एग्जांपल
जो स्टूडेंट्स हैं, यार मैम आज होमवर्क ना मांग ले, मैं नोटबुक नहीं लाया हूँ आज, मैम होमवर्क ना मांग ले, एंड मैम इमीडिएटली क्लास में घुसते ही सबसे पहले बच्चों अपनी होमवर्क की कॉपी दो. Happened? Yes. So we need to understand. We have two kinds of dreams. ये हमारा unconsciously चल रहा होता है, मगर हम ना दो तरह के सपने देखते हैं, एक जो हमें चाहिए और एक जो बिल्कुल नहीं चाहिए. और कमाल की बात यह है कि हमारी लाइफ में दोनों सच होते हैं. आज तक हो सकता है हम इन चीजों को सबकॉन्शियसली करे थे, इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, मगर हमारी लाइफ में दोनों चीजें सच हो रही है. एंड अब हम बात करने वाले हैं उसको ना, अब थोड़ा लॉजिकली समझेंगे कि हाउ इज दिस वर्किंग, ताकि कहते हैं ना, अगर अपनी गलती का रीजन समझ लिया तब उसके बारे में कुछ कर भी पाएंगे ना. सो आई विल टेल यू हाउ दैट वर्क्स. One second. Yes. So there are two types of dreams that you want. इसको आप चाहो तो आप बना भी सकते हो. एक है things that you want in your life, and एक है things that you do not want in your life. Things that you want in your life, अगर आप अपनी लाइफ में वो चीजें चाहते हो जो आपकी मनपसंद है, तो उसके लिए आपको इस स्टेट में रहना पड़ेगा, which is सबसे पहले good thoughts. आपके दिमाग में ख्याल क्या चल रहे हैं. सेकंड, आपके इमोशंस, आप फील कैसा कर रहे हो, और फिर आप जैसा फील कर रहे हो वो यूनिवर्स में वैसी वाइब्रेशंस देता है. देखो, आप भगवान में मानो ना मानो, क्रिश्चियनिटी में मानो या हिंदुइज्म में मानो या सिखिज्म, इस्लामिज्म, जूइज्म, जिसमें भी मानो या भगवान में मत मानो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. बट आपने ये तो देखा होगा ना कि देयर इज सम पावर व्हिच इज बिगर देन यू एंड मी, जिसने इस अर्थ को बनाया हुआ है, अर्थ को चला रही है. उसका नाम आप कुछ भी दो, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, है ना. जैसे अभी आप और मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, आप मुझे समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, है ना. हिंदी में, इंग्लिश में, हो सकता है आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज भी हो, तो यू एंड आई वी कम्युनिकेट इन लैंग्वेज, है ना. फ्रांस में जाएंगे तो फ्रेंच में बात करेंगे. मगर ये जो यूनिवर्स है ना, इसको हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच से फर्क नहीं पड़ता. ये सिर्फ एक भाषा समझता है, ये सिर्फ एक भाषा समझता है, और उसकी भाषा होती है वाइब्रेशंस. सिर्फ एक भाषा. What vibration are you giving out? The universe will give you the exact same thing in your life. That's how it works. You cannot manipulate it. You cannot, play around with it. So in order to attract things that you want in your life, you have to start with good thoughts, good emotions, good feelings, vibrations, and things that you do not want, bad thoughts, bad emotions, bad feelings, and then you give out the vibrations of bad. मगर गुड का मतलब क्या है, बैड का मतलब क्या है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे. अब अच्छा, एंड एक और चीज, माना इस क्लास में आपको आपकी मैम ने, आपके स्कूल ने यहाँ पे बुलाया है, मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस सेशन को आप खुद के लिए मत कीजिए. उनका काम था आपको सिर्फ यहाँ तक भेजना, आप बैठे हो, ठीक है. मगर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इट इज अबाउट यू एंड योर लाइफ एंड योर ड्रीम्स, एंड आप अपने सपनों को सच करना. तो बहुत बहुत जरूरी रहेगा कि यू मॉनिटर योरसेल्फ एवरी स्टेप दैट वी डिस्कस, ठीक है. तो लेट्स फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फीलिंग्स एंड व्हाट इज बैड फीलिंग्स, है ना. जानना तो बहुत जरूरी है. बैड फीलिंग्स से शुरू करते हैं क्योंकि हम लोग उस पर नॉर्मली रहते हैं, है ना. इन फीलिंग्स में अगर आप रहोगे तो आप अपनी ड्रीम्स, जो भी आपका सपना है, छोटा बड़ा, जो भी आपका सपना है, ये आपकी लाइफ में it will go away from you, ठीक है. Let's start with the first one, which is boredom. Very common for us, ना. हम normally आज की डेट में, यार मैं बोर हो रही हूँ यार, ये क्या बोल रही है एनी मैम, यार स्कूल ने बिठा रखा है, getting bored. यार मैं मैथ्स कर करके बोर हो गई हूँ यार. boredom. हमें लगता है boredom में क्या गलत बात है. बोर है, आपको पता ही नहीं है. You being in a place of boredom, you being in a feeling of boredom is actually आपको आपकी ड्रीम लाइफ से दूर लेके जा रहा है. आपने देखा होगा ना, there is a reason why 95% of people, उनके सपने सिर्फ सपने बने रह जाते हैं और वो सच नहीं होते. आज आप उसके रूट कॉज पे जा रहे हैं कि सपने जब सच होते हैं तो क्यों होते हैं और जब नहीं होते तो क्यों नहीं होते हैं.
और आप सिर्फ अपने आप को मॉनिटर कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है? एक दूसरे को हम पॉइंटिंग फिगर्स नहीं करेंगे. So the first step of bad feeling is boredom. Second is annoyance. चिढ़ मत जाना, यार मत करना यार, मुझे नहीं पसंद, मत कर यार, यार ये सब्जेक्ट पढ़ के ना मुझे बहुत चिढ़ मच रही है. Annoyed, annoyance. यार ये आप बड़े हो जाएंगे, आप काम पे जाएंगे, यार ये ना कुलीग मुझे बहुत अनॉय कर रहा है यार, I don't like the way he's talking to me. Annoyance. It takes you away from your dreams. Third is criticism, right? You're criticizing something about someone. इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए. He shouldn't talk to me like this. He should talk to me like that. He shouldn't do this. He should do that. I should not do this. Criticizing. कमाल की बात है, ये सारी चीजें हम इतना ज्यादा बाय डिफॉल्ट में कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है कि यार इसका कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है मुझे मेरे अगले 30 दिन तक. ठीक है, जब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ इसको हम करेंगे. एंड देन यू सी, चलो अभी आप सिर्फ सुन लो, ठीक है, अभी सिर्फ सुन लो. क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट आता है ब्लेम. तुम्हारी वजह से मुझे ऐसे नहीं हुआ, यू नो, तुम्हारी वजह से मैंने एग्जाम अच्छा नहीं किया, यार मेरे को मेरा ट्यूटर अच्छा नहीं मिला इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए. समटाइम्स वी ब्लेम गॉड, राइट? गॉड ने मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों कर दी यार, व्हिच आई कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट. Blame. यार मैंने ऐसे गलती कैसे कर दी यार, it destroyed everything. Blame. We think it doesn't matter, you know, we say it any, but हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे को मेरे सपने से, not my mother, not my father, not my best friend, but वो मेरे को मेरी ड्रीम लाइफ से कितना दूर लेके जा रहा है. Blame. अरे ये गवर्नमेंट तो कुछ काम ही नहीं करती है. Blame. ऐसी चीजें जिसका हो सकता है हमारी लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट भी ना हो. अरे भाई जो भी ड्राइंग कर रहा है मत करो, राइट? ब्लेम. नेक्स्ट इज एंगर. How dare he? Anger, we all know. I don't have to demonstrate anger. We all know anger. उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसने ये कैसे तोड़ दिया, उसने मुझसे ऐसे कैसे बात करी. Anger. Revenge. Oh, he did that to me. अब तू आ बेटा, मैं तेरे को देखती हूँ. तूने ऐसे किया, तू आ बेटा, मैं तेरे को देखती हूँ. उसने मुझे नीचा दिखाया, now you come, now I'll show you. Revenge. Hate. I really hate that person, man. I hate him. Guilt. Giladi. Regret. I shouldn't have done this, yaar. I shouldn't have done this. Guilt. Or I should have done that, yaar. I didn't do it, yaar. I'm so guilty of not doing it. Guilt. Worry. आपको अपने कभी भी नाइटमेयर्स को सच करना हो ना, अपने नाइटमेयर्स को सच करना, उसके बारे में चिंता करनी स्टार्ट कर. चिंता करनी स्टार्ट कर दो, या फिर और बेस्ट है उसके बारे में डरना शुरू कर दो. वो आपके नाइटमेयर्स को सच कर देगा. That's how it works. आपको अगर मम्मियां जो है, मम्मियों को अगर है ना कि मेरा बच्चे के मार्क्स खराब ना आए, चिंता करनी स्टार्ट कर दो. अरे मेरे बच्चे का ये ना हो जाए, मेरे बच्चे का ये ना हो जाए, मेरे बच्चे का ये ना हो जाए. जितनी ज्यादा आप चिंता या डर की फीलिंग में रहोगे, उतनी जल्दी वो चीज सच हो जाएगी. That's how it works. I am not cooking this up. I am not cooking this up. This is the law that it works. It has been highly researched, and you know, all the biggest people, I would rather you listen to all the wonderful people, they are talking the same thing. आप अपने किसी भी नाइटमेयर को सच करना चाहते हो, उसके बारे में डरना स्टार्ट कर दो. उसके बारे में डरना स्टार्ट कर दो. It will surely come true. मैं मोटी ना हो जाऊं, मैं मोटी ना हो जाऊं, या मेरा हेयर फॉल ना हो जाए, मेरा हेयर फॉल ना हो जाए. Guess what? It will start happening, rather it will increase. कल को आप कॉलेज में जाओगे, जॉब में जाओगे, यार मेरी नौकरी लग जाए, यार नौकरी नहीं लगेगी तो ये हो जाएगा. डरना शुरू हो जाओ, यार नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, यार नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा. यार congrats, you retracted not having a नौकरी. अभी जो आप चाहो तो आपको ये फीलिंग चार्ट हम शेयर भी कर देंगे. आप ना इस फीलिंग चार्ट का एक प्रिंट आउट भी अपने घर में लगा सकते हो.
है ना, टू कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ कि यार मैं अभी किस फीलिंग से ऑपरेट कर रहा हूँ. अगर आपको अपने सपने प्यारे हैं तो ही आप ये करोगे ऑब्वियसली, वरना कोई बात नहीं. आज तक लाइफ जी, आगे भी जी लेंगे. मगर हाँ, अगर आपको सचमुच अपने सपनों से कुछ प्यार है तो यू नो वांट टू बी अंडर द मॉनिटरिंग of how you are feeling. And all these bad feelings that we just discussed are some things that will attract things that you do not want in your life. Now let's look on the brighter side, the upper part, which is good feelings. Good feelings starts from satisfaction. It starts from satisfaction. Yeah, chal theek hai. Jo hai, chal, I'm satisfied. Chal, okay, to start with, I'm satisfied. ठीक है. Then like the next CD is hopefulness. उम्मीद जिसे कहते हैं, है ना, hopefulness है यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार, hope है. हाँ चल ठीक है, but hope है, हो जाएगा यार. उसकी अगली सीढ़ी आती है joyfulness, then excitement, happiness, passion, joy, and इसकी सबसे top 2 की सीढ़ियां हैं gratitude and love. Like if you really want to attract your dreams into your life, इसके top 2 होते हैं gratitude and love. Love को आपको मैं बता दूंगी, love वो नहीं होता जो आप समझ रहे हो, उसे love नहीं कहते. Love की entry gratitude से ही होती है. And you know, the more you make your practice of gratitude, the faster it will make whatever your desirable dreams are, it will attract them into your life. That's how it works. That's how it works. That's how the universe works, right? आपकी लाइफ आज आप देखो, आपकी लाइफ में कितनी फेवरेबल चीजें हैं, आपकी लाइफ कितनी फेवरेबल चीजें हैं और कितनी फेवरेबल चीजें नहीं हैं. एंड देन सी, आप अपने नॉर्मल दिन में, जैसे कल का दिन आपने बिताया या आज का दिन आपने बिताया, आप इन सब फीलिंग्स में से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किस फीलिंग में थे? ओल्ड की फीलिंग में थे, या अरे मैं क्या करूंगी की फीलिंग में थे, या खुशी से नाच रहे थे की फीलिंग में थे? अपने आप से चेक करो. अभी सिर्फ देखो, हम पहली बार बात कर रहे हैं इसके बारे में. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, अबाउट द feelings chart? Rather, I'd like to invite you to do this experiment. ठीक है, don't just take me for my word. सिर्फ एनी ने बोला इसलिए कर रहे हैं नहीं. I would like to invite you to this experiment. There is this Japanese scientist called Dr. Emoto. It's an empowering slide for self-awareness. Wonderful. It's understandable that parents get angry, so it's a bad feeling. There are well-wishers. Very beautiful question, Akshay. Very, I don't know if you're my age or older, but yes, हमें पता ही नहीं है कि कभी कभार, we'll talk about your question. Very beautiful question. कभी कभार as a parent या as a teacher, हम अपने student का या अपने बच्चे का भला तो चाह रहे होते हैं, मगर हम अपने मुंह से एक ऐसे शब्द निकाल देते हैं या ऐसी बातें बोल देते हैं, you know, हम चाहते भला है, मगर you know, the vibration that we're sending out of what we're manifesting is rather the opposite. जैसे आपने सुना होगा, sometimes parents say, अरे बच्चे पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, है ना? They say like, अरे पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, अरे पढ़ ले नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, अरे पढ़ ले नहीं तो लाइफ झंड हो जाएगी. A lot of times you might have heard these statements from parents, from teachers. Although they want the benefit of the child, I understand that. चलो अभी इसके बारे में बात करेंगे. I want you to stay with your question. Very wonderful question, and just stay with it. ठीक है, we'll address it. अभी तक सब कुछ clear? Very wonderful question. I want you to, after this experiment, I will answer your question. ठीक है, आप सब लोग as a bonus, ये एक Japanese scientist है, डॉक्टर इमोटो. इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया था पानी के साथ. आप सबको पता है पानी क्या होता है ना? आप और मैं पानी से बने हुए हैं, ये भी पता है आपको. आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, it is made up of 5 elements, right? You are aware about that? What are the 5 elements your body is made up of? Water, earth, space, fire, and air. Right? 5 elements. Your body is made up of what percentage of water? More than 2/3% you are made up with water, right? Now, I am going to invite you to do this experiment. It's very fun. बहुत मजा आएगा आपको करने के लिए. अपने घर पे कीजिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ या स्कूल में टीचर्स के साथ, जैसे भी आपको ठीक लगे, बट घर पे तो जरूर कीजिएगा अपने पेरेंट्स के साथ.
एक्सपेरिमेंट में क्या करना है आपने, डॉक्टर इमोटो ने क्या किया, उन्होंने ना पानी की ड्रॉपलेट्स ली, वाटर लिया जैसे पानी, उसको उन्होंने ही एक्सपोज देम टू वेरियस वर्ड्स, म्यूजिक एंड एनवायरनमेंट and then froze them for 3 hours, and he then examined the crystal formations under a dark field microscope and he took photographs of the results. The results were totally mind blowing. उन्होंने क्या किया, आपको मैं फोटोज दिखाते हैं, ठीक है। हमें नॉर्मली लगता है ना, अरे मैंने तो शब्द से ऐसे ही बोल दिया, मैंने तो मजाक मजाक में बोल दिया, अरे मैं तो ऐसे ही बोल दिया, मैं मीन थोड़ी ना करता था। A lot of times आपने या आपके आसपास के लोगों ने आपको देखा ना, अरे अरे तो ऐसी मजाक मजाक में बोल दिया, अरे इसमें क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ऐसी गॉसिप कर रहा था, असली में थोड़ी ना मीन कर रहा था। A lot of us do a lot of things like that, है ना। बहुत बहुत ध्यान से we are going to talk about this experiment, this photograph that you're going to observe. उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 जार्स लिए एंड एक पेपर के ऊपर उन्होंने लिखा, "You make me sick, I will kill you." You know, मतलब एक तरीके से नेगेटिव बातें। अरे यार तू तो, जैसे हिंदी में हम लोग बातें करते हैं, अरे तू, तेरी तो शक्ल देख के ऐसा लगता है दिन खराब हो गया, या तू कुछ नहीं कर सकता, लाइक दैट, नेगेटिव चीजें। एक पे उन्होंने ये लिखा और दूसरे पे उन्होंने लिखा, "I love you." Same पानी, same time, just exposed to different emotions and then froze for the same time, and when observed under a microscope, आप ये दोनों फोटोज देख पा रहे हैं। ऊपर वाला आप फोटो देखेंगे ना, तो इट लुक्स लाइक जैसे गला हुआ टार, या यू नो कोई चीज रॉट हो गई है, लग रहा है ऐसे। एंड नीचे वाला आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ पर्ल क्रिस्टल फॉर्मेशन, like something really wonderful, something really valuable, something जिसके अंदर ना जाने कैसी चमक आ गई है। Can you see the difference between both the images? ये अभी सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट सुन रहे हो, आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, मैंने भी किया था, मेरे फ्रेंड्स ने भी किया था, हमारे पूरे ग्रुप ने भी किया था। So wait a minute, aren't we made up of water? आप 72% पानी से बने हुए। So imagine how your words are affecting your own body, है ना। आप किस तरीके की बातें अपने आप से कह रहे हो। आप अभी अगर स्कूल में हो तो आप, I hope parents and teachers are on this call, I hope, because you know you have a major impact on the students. तो आप कैसी बातें उस बच्चे को बोल रहे हो। हमें क्या लगता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, मैंने बोल दिया, तू निकम्मा है तो कुछ नहीं कर सकता, तेरी लाइफ कैसे नहीं होगी, है ना। हम में से कितने लोग ऐसे कैजुअली, है ना, टीवी देख रहे होते हैं, अभी निकम्मे काम कर ले, कब तक टीवी देखता रहेगा, कुछ काम कर ले। हम ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, अरे मैं चाहती तो उसका भला हो, बट मैं उसको ऐसे बोल रही हूँ कि तेरा कुछ नहीं होगा। We don't know what you and I are made up of, you know, our constituency, हम लोग पानी से बने हैं, and water has memory, water stores information. आप जिस तरह की चीजें अपने आप को बोल रहे हो या आपके आसपास के लोग आपको बोल रहे हैं, that's who you are becoming, that is who you are becoming. So this experiment, आप सिर्फ मेरे को सुन के मत कीजिएगा, do this experiment, ठीक है। When you say things like मेरे से नहीं हो पाएगा यार, मैं नहीं कर सकता इसको यार, या I am a failure, या यार I am too stupid to do this यार, या I won't get well, या मेरी तो तबीयत ही खराब है, मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता। आप जो बोल रहे हो, that's what you are. If you examine yourself at a molecular level, that's what you are becoming. So this is a scientific experiment. I want each and देखो, कहते हैं ना, इस प्रैक्टिस में भी आपका भरोसा तब बनेगा जब आप इसको लॉजिकली समझ पाओगे, है ना। सिर्फ ब्लाइंड फेथ की एनी मैम आई थी, उन्होंने बोला था इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं। यूज योर ब्रेन, यूज योर माइंड, डू द एक्सपेरिमेंट, सी इट विद योर ओन आईज, एंड बिकॉज उससे क्या होगा, आप अपनी आंखों से होते हुए देखोगे तो यू विल आल्सो बी लाइक, you know, much more aware and much more conscious about the whole activity.
So make the choice of saying the best words for yourself and your loved ones. Say often. मैं हिंदी में बात करती हूँ, आप इंग्लिश में चाहो तो आप आई एम वंडरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गॉड्स चाइल्ड, नहीं तो बोलो यार मैं सब कर सकता हूँ। आप बोलना शुरू करो। इनिशियली हो सकता है थोड़ा ऑकवर्ड लगे क्योंकि हो सकता है आपने आज तक ये बोला ही नहीं था। You know, just get up and say, oh, I can do anything. Yeah, oh, I am a genius. Oh, मेरे को तो बहुत बढ़िया, अरे I am a genius, I can do anything. या फिर oh, I am the luckiest person, जो काम करने जाता हूँ इतना आसानी से हो जाता है। Whatever you like. Oh, I am a rock star. Oh, I am fantastic. Start saying this. Start saying this to yourself. Start doing this. आज हम बैठे हैं 4th of April. Do this till 4th of May. 30 days. 30 days, right? जब तक हमारी मैजिक बुक चल रही है, consciously choose to say to yourself, अब टीचर्स हैं तो to yourself and to the kids around you, only these positive affirmations, ठीक है? So he also did this with cooked rice, मतलब उबले हुए चावल। उन्होंने क्या किया, अच्छा ये अब आपने एक्सपेरिमेंट करना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 जार्स लिए। 2 जार्स मतलब जैसे 2 कांच के जार्स होते हैं ना, ऊपर जिसके ढक्कन हो आप उसे बंद कर सके, तो उसमें थोड़े से उन्होंने उबले हुए चावल डाले। उबले हुए चावल के साथ थोड़ा सा पानी डाला। एक जार के ऊपर उन्होंने लिखा आई लव यू, स्टिकर लगा के बाहर लिख दिया आई लव यू, और एक के ऊपर लिख दिया आई हेट यू। ये असाइनमेंट है। सो उन्होंने क्या किया, एक जार पे लिखा आई लव यू, एक जार पे लिखा आई हेट यू, एंड देन डेली, हर दिन, और उनको थोड़ा डिस्टेंस पे रखा। जो आई लव यू वाला जार था उसको जा जाके अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, जैसे कि यार ये तू बहुत अच्छा है, तुम सब कर सकते हो, तुम बहुत वंडरफुल हो, जो जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें। और आई हेट यू वाले जार को जितनी गलत बात बोलना चाहो कि अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा आई हेट यू, आई दिस एंड दैट। डू दिस फॉर 30 days. ये सिर्फ आपने देखना नहीं है, ये आप लोगों ने असाइनमेंट करना है। एंड हम लोग अभी मैजिक बुक में जाएंगे परसों से, तो मैं आपसे एंड में आपके जार्स की फोटोज मांगूंगी कि क्या हुआ आपके जार का। तो आज आप सब घर पे ही हैं, तो डू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है? एंड देन टेल मी कि आपके लव वाले जार का क्या हुआ एंड हेट वाले जार का क्या हुआ। क्या आपने कुछ फर्क देखे? सेम जार, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम एवरीथिंग, जस्ट योर वर्ड्स हैड चेंज्ड। So yes, let's do this experiment. Fill it with So okay, any questions? मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ना हो कि मैं बहुत सारी information दे रही हूँ and it's too much to process. Is everybody with me? Is everybody with me? Understanding? Yes. Awake? ऐसा तो नहीं है नींद आ गई, अरे कितना बोली जा रही है ये, ऐसी तो नहीं है? बढ़िया, चलो बहुत अच्छे, ये अच्छी बात है। As long as it's fun for you. As long as it's fun for you, it's fun for me, है ना? Good, very good. So अभी तक हमने क्या बात की? हमने अभी फीलिंग्स, अभी तक हमने सीक्रेट मूवी देखने की बात की, हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाने की बात की, एंड हमने ये एक्सपेरिमेंट आपने करना है। एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर आपको सचमुच दिखेगा कि आपके शब्द, आपकी फीलिंग्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको आप ऐवे ही कहते हैं ना, ओपन में छोड़ देते हैं, मॉनिटर नहीं करते हैं। So this is what we've discussed till now. Okay. Now we're going to talk about the law, right? Like the law of attraction. So जैसे आप लोगों ने law of gravity के बारे में सुना होगा स्कूल में, साइंस में, law of gravity है ना, वो सेब था, सेब गिरा नीचे, है ना? फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया में बैठे हो या यूएसए में बैठे हो, या लड़के हो या लड़की हो, या बहुत अच्छे इंसान हो या कोई क्रिमिनल हो, फर्क नहीं पड़ता। It's a law of the universe which applies same for everybody. Same for everybody. Doesn't matter कि आप 2 साल के बच्चे हो या 80 साल के इंसान हो, या doesn't matter कि आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, doesn't matter. Applies for everybody. Right? आप कोई चीज नीचे फेंकोगे तो वो नीचे ही जाएगी। आप कोई बहुत ही महान इंसान अगर ऊपर से छलांग मारेगा या कोई बहुत ही क्रिमिनल मारेगा, everybody will fall down. Right? It's a law of the universe which applies the same for everybody, whether you believe in it, don't believe in it, use it, don't use it. है ना? ऐसे तो नहीं कि आपने बोला मैं नहीं बिलीव करता लॉ ऑफ ग्रेविटी, सब झूठ है, मैं नहीं मानता लॉ ऑफ ग्रेविटी, but do you think it will stop working on you if you say so? No.
right? You believe it, you don't believe it, irrespective, it will always work on you. हाँ, मगर आपने उसको जान लिया, समझ लिया, तो now you can work alongside it. Then you will know क्या करना है, क्या नहीं करना है. And it's a laws of physics होते हैं जो उनके थे 3 laws of physics. उससे पहले एरोप्लेन नहीं बना पाए, बट हम लॉस को समझा, जाना, कैसे यूज होते हैं, उस हिसाब से पूरा डायमेंशंस बनाए, कैसे करना है, तो आप उड़ भी सकते हैं, है ना. तो इन ऑर्डर टू मेक द लॉ वर्क इन आवर फेवर वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. वरना क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट पे काम कर रहा होता है, मगर काम वो हमेशा ही करेगा. सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग ऑन यू. आप जिस क्षण से पैदा हुए हैं से लेके आज तक ये आप पे काम करता आ रहा था, है और रहेगा. आप इस वर्कशॉप में नहीं भी आते तब भी उसने आपकी लाइफ को आज तक उसी ने बनाया, आपको जो भी बनाया है. हाँ, मगर हो सकता है हमने इसके बारे में पहले कभी ध्यान नहीं दिया. ठीक है. So how does law of attraction work? It works by manifestation. And how does manifestation work? By writing down what you want. ठीक है. So these are some areas जो हम लोगों ने आपके ड्रीम लिस्ट की बात की. आप इन एरियाज को लिख सकते हैं ताकि आपको अपने सपने लिखने में आसानी हो जाए. ठीक है, कि आप अपने करियर में या एजुकेशन में आपका क्या सपना है. मे बी आप किसी सब्जेक्ट में कोई मार्क्स चाहते हैं, मे बी हो सकता है आप मास्टर्स करना चाहते हैं, मे बी हो सकता है आप कोई ओलंपियाड क्लियर करना चाहते हैं. जो भी आपका अपने पढ़ाई के एरिया में सपना है उसे लिख लीजिए आप. फिर आप रिलेशनशिप्स में देख सकते हैं, है ना. अपनी मम्मी के साथ देखो, अपने पापा के साथ देखो. हो सकता है अभी आपकी मम्मी के साथ झगड़े हो रहे हैं, आपका सपना है कि यार मेरी मम्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहे. या हो सकता है आपको आज अपनी टीचर जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रही, आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत मुश्किल आ रही है, आप चाह रहे हो कि यार मेरा उस सब्जेक्ट में को समझने में बहुत आसानी से हो जाए. वो आपका ड्रीम हो सकता है, तो वो लिख लो. हो सकता है आपके किसी दोस्त से अभी झगड़ा हो गया है और आपको बहुत ही अकेला अकेला फील हो रहा है ना. आपको अपने दोस्तों के साथ, एंड आपको है मेरा सपना कि यार मेरी लाइफ में अच्छे दोस्त आ जाए जिनके साथ मैं हंस सकूं, खेल सकूं, पढ़ सकूं, दे आर देयर फॉर मी, तो वो लिख लो. ठीक है. जो भी आपके रिलेशनशिप्स में आप चाहते हो, राइट इट डाउन. सोशल मीडिया, आजकल हो सकता है हमारा सोशल मीडिया में भी कोई ड्रीम हो, है ना. जैसे हम में से, अब मुझे नहीं पता आप लोगों का एज ग्रुप क्या है, बट जैसे कुछ का होता है कि आई वांट टू क्रिएट कंटेंट, एनीथिंग लाइक दैट. इंस्टाग्राम, फेसबुक से रिलेटेड कोई ड्रीम है तो वो लिख लो. मनी से रिलेटेड, ऑल्दो आप स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर्स, एवरीबडी इज हियर. एज लॉन्ग एज यू आर ह्यूमन, एवरीबडी नीड्स मनी, है ना. भले आप वो खुद कमा रहे हो या मम्मी पापा दे रहे हैं, या है ना कि मुझे ये PS5 खरीदनी है, या ये कपड़े खरीदने हैं, या इस ट्रिप पे जाना चाहती हूँ मैं, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए. या मैं नौकरी करती हूँ और मेरा सपना है कि मैं महीने के इतने पैसे कमाना चाहती हूँ, या ये प्रमोशन चाहती हूँ, या ये पोस्ट चाहती हूँ. जो भी आपका सपना है, ठीक है. देन हो सकता है आपका वेकेशंस के एरिया में कोई हो कि मैं इस जगह पे अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ या किसी कैंप में जाना चाहती हूँ, वो लिख सकते हो. आप अपने मार्क्स के एरिया में कि मैं स्कॉलर बनना चाहती हूँ अपने स्कूल का, या ये मेडल चाहती हूँ, या जो भी आपका सपना है, ठीक है, आप इसको लिख लें. आज हम आपके ड्रीम्स की क्लैरिटी की, चलो लिखा तो सही कि हम अपनी लाइफ में चाहते क्या है. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद दैट बाय राइटिंग व्हाट यू वांट. इसको कैसे मैनिफेस्ट करना है, what are the techniques of bringing what you want into reality, we'll talk about. I'm thinking मैं उसके बारे में आपको आज बताऊं या परसों से बताऊं. चलो. So you firstly write down what you want and then you write down why you want it. So for example, आपको what you want में आपको चाहिए, जैसे मैं अपना सपना बताती हूँ. मेरा सपना है कि इंडिया के स्कूल्स में ग्रैटिट्यूड इज अ कंपल्सरी प्रैक्टिस एंड बच्चे, यंग पीपल, छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक सब अपने सपनों को सच करना चाहते हैं. दैट्स व्हाट आई वांट. ठीक है. होल ऑफ इंडिया, everybody's got the clarity and is working towards their dreams and making them come true. That's my want. ठीक है. Write why you want it. क्यों चाहिए मुझे, क्यों चाहती हूँ मैं लोगों के सपने सच हो, क्यों? क्योंकि I want to live in an India where our education system is number 1 and लोग देश विदेश से आते हैं भारत में सीखने के लिए कि वाओ यहाँ पे इतनी वंडरफुल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे है,
एंड सारी टॉप कंपनीज पे इंडिया के सीईओज बैठे हैं, भले बच्चे आगे जाके पॉलिटिशियन बने या डॉक्टर बने या टीचर बने या कुछ भी बने, मगर कहते हैं ना, दे आर डूइंग व्हाट दे लव एंड दे आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब एट इट. So I see India being number one. So that's why I want this dream, यार. ये मेरा सपना है. आपको मेरे सपने से कोई लेन देन नहीं है. आप अपना सपना देखो. आपका सपना क्या है और आपका वो सपना क्यों है? अगर आप मैथ्स के पेपर में 80 मार्क्स चाहते हो तो क्यों चाहिए? Why do you want 80? हो सकता है कि so write that down. मेरे why से आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. You write down. अच्छा ठीक है, मेरे को अगर PS5 चाहिए तो क्यों चाहिए? अगर मैं स्कूल की हेड गर्ल बनना चाहती हूँ तो क्यों बनना चाहती हूँ? जो भी आपका सपना है. Why do you want what you want? And this why will tell you कि आपका सपना सच होगा या नहीं होगा, है ना? वरना बोलने को तो हम कुछ भी बोल देते हैं, मेरे को 100 करोड़ दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो. लालच का कोई अंत थोड़ा होता है ना? यहाँ पे हम लालच की बात नहीं कर रहे. आई रिपीट, यहाँ पे हम लालच की बात नहीं कर रहे. यहाँ पे हम आपके सचमुच रियली 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 वांट वाले सपने की बात कर रहे हैं कि यार ये तो मुझे चाहिए चाहिए. दिस आई ट्रूली वांट. एंड वो आपको कैसे पता चलेगा? आपके व्हाई से. एवरीबॉडी विद मी? नाउ normally when we talk about something like this, there is one question जो automatically दिमाग में आता है. क्या है वो question? जब हमने what और why की बात की तो normally एक question automatically हमारे सामने आ जाता है. What is that? Is this what, why? There is a third, like how. है ना? What लिख लिया, why लिख लिया, मगर होगा कैसे? Right? This question comes to you. किसके दिमाग में आ रहा है अभी? पर होगा कैसे? ऐसे कैसे होगा कैसे? So, in this world that we are going to be discovering over the next 30 days, how को आप कैसे ना क्वेश्चन ले, आप मैंने ना यहाँ पे जानबूझ के डेंजर साइंस लगाए हैं कि हाउ विल आई डू इट. पुट अ क्वेश्चन, like put a cross on the how. Just focus on what you want, why you want. Never put focus on the how, because in the world of manifestation, you don't how, you just allow for it to happen. I'll tell you how to go about. Yes, am I audible? कमाल की बात है. देखो जैसे हमने ये बात छेड़ी, थैंक यू, जैसे हमने बात छेड़ी यहाँ पे the power went off. जैसे होता है ना, something's about to happen. The power went off. Okay. Yes. So in this world of manifestation, you write down what you want, why you want it. You don't, I'll give you an example, right? See, this world you and I are living in, whichever part of the world you're staying in, Delhi, Rajasthan, Antarctica, USA, whatever, it's planet Earth, right? As long as you are a human being on planet Earth, there is some higher power. Just say, matlab, dekho, I'll give you an example. Yes, I'll give you an example. जैसे आपके पेरेंट्स हैं, है ना, जिन्होंने आपको पैदा किया. आप भी हो सकता है पेरेंट हो जिनके बच्चे हैं. सो एज अ पेरेंट, नॉर्मली एक पेरेंट क्या चाहता है कि यार मेरे बच्चे के जितने सपने हैं मैं सच कर सकूं हो. एक नॉर्मल पेरेंट यही चाहता है ना, कि मेरा बच्चा जितनी अच्छी लाइफ जी सकता है जिए, उसके सारे सपने सच हो, हमेशा खुश रहे. यस,
कोई भी माता पिता अपने बच्चे को इसीलिए जन्म देता है कि वो बच्चा बहुत खुशी खुशी लाए, यस नो? कोई पेरेंट ये थोड़ी ना सोचता है कि मैं अपने बच्चे को इसलिए जन्म दूंगा ताकि वो रोए पिटे चिंता में रहे, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं ना? If you are a parent, that's not what you wanted for your child. So you need to understand. Now, if you are a parent and that's what you wanted for your child, similarly, आपके parent का parent, उनका parent, उनका parent, उनका parent, उनका parent, and you know the major ultimate parent जिसने आपको और मुझे हम सबको यहाँ पे पैदा किया, जो ये पूरी earth को चला रहे हैं, which is, you know, I'll use this term called the universe. Obvious सी बात है, उसने भी अगर आपको और मुझे यहाँ पे रखा हुआ है, so they do want कि यार हमारे भी सारे सपने सच हो, you know, because that is the nature. You know, that's why it gave life to you and me. It wants you and I to make all of our dreams come true, like any normal parent would, right? And so one thing we need to understand is this universe is already in alignment with मेरा जो सपना है उसको सच कर रहा है. हाँ, but now the question is coming, अगर वो सच नहीं हो रहे हैं तो what is missing? है ना? What is missing? तो या तो हो सकता है आपने आज तक अपने सपने लिखे ही नहीं थे, या हो सकता है आपने उसका वाई नहीं लिखा था, या हो सकता है अभी जो हम आगे अगले 30 दिनों में बात करेंगे कि अपने सपनों को मैनिफेस्ट कैसे करना है, उसमें से आप कोई चीज मिस आउट कर रहे थे, है ना? सो अभी आप सिर्फ जान लीजिए, बिकॉज यू नो अभी हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं. इट माइट बी टू मच इंफॉर्मेशन टू इम्प्लीमेंट, विच वी विल डू in the next course, you know, of the daily meetings that we will be doing. But you can start to, you can start doing the homework in this aspect. Everybody with me? Yes? Everybody? अच्छा, आप में से किस किस को अपने सपनों को लेके अंदर से कोई होपफुलनेस आ रही है कि हाँ कुछ तो कर सकते हैं अब, मतलब कुछ बिकॉज अगर आप अभी अपने सपनों को लेके बोर्डम में हो तो यू नो इट्स टाइम टू शिफ्ट दैट, है ना? Good. So let's continue. Wow. And then we have this dialogue जो गरिमा जी ने बहुत, है ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आपका काम है सिर्फ ये जानना कि आप दिल से चाहते किस चीज को हो. The people, the circumstances, the situations will move for you to receive whatever it is that you desire. All the things will fall into place. But यहाँ पे कहते हैं ना, की पॉइंट क्या है? शिद्दत है, और किस चीज के लिए है ना? उसके लिए क्लैरिटी भी तो होनी चाहिए. हाँ, मगर अगर इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. दिस इज नॉट जस्ट अ मूवी का डायलॉग, दिस इज योर लाइफ and you will experience it. I assure you, अगर आप एक असाइनमेंट जो अभी हम बात करेंगे आप करेंगे, come to me in 30 days and tell me if you experience magics in your life or not. I assure you, if you do this exactly as we talk, your life will not be the same after these 30 days. I can assure you that. हाँ, but आपको वैसे करना पड़ेगा जैसे हम करेंगे, ठीक है? So yes, this is how it works. But हाँ, ये मैंने दोबारा स्लाइड इसलिए डाली कि भैया एंड में एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि मैंने व्हाट लिख लिया, वाई लिख लिया और अब मैं सोने जा रहा हूं, है ना? व्हाट लिख लिया, वाई लिख लिया, मैं सोच भी नहीं रहा. मैं एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा. एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे भी अगर आप नीचे वाले एरिया में देखते हो तो गाड़ी का इंजन ऑन करके ड्राइविंग सीट पे बैठ के यू नो ऑन करना, एक्सेलरेटर दबाना, बी पॉइंट तक गाड़ी लेके जाना, एक्शन ही तो होता है. वो आपको करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि अब मैं ए पॉइंट पे बासियां मार रहा हूँ, सो रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि बी पॉइंट मेरे पास खुद चल के आ जाएगा. नहीं, एक्शन आपको लेना पड़ेगा. बट हाँ, बीच का रास्ता आपको बहुत आसानी, यू नो, इट विल बी अ स्मूथ राइड फॉर यू. सो यस, oh, this is a very, 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 यहाँ तक सब clear? यहाँ तक सब clear? All good?
अब जो मैं टॉपिक की बात करने जा रही हूँ, सो अभी तक वी टॉक्ड अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वी टॉक्ड अबाउट योर फीलिंग्स, वी टॉक्ड अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड हाउ टू मैनिफेस्ट. अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसी चीज है, अगर आपने ये कर लिया तो आपके अपने सपनों तक पहुंचने की स्पीड विल क्वाड्रबल, विल बी, कहते हैं ना, मतलब रॉकेट लग जाएंगे, इट विल बी फिनोमिनल. अब हम एक ऐसे, कहते हैं ना, एक बोनस बूस्टर की बात करने जा रहे हैं जो आपके, कहते हैं ना, लाइफ को मेक इट या ब्रेक इट कर सकता है. आप में से किस किस ने अनुभव किया है कि आपकी लाइफ में कभी कभार सब कुछ होता है ना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी फैमिली, अच्छा स्कूल, अच्छे मार्क्स, डिसेंट सब कुछ चल रहा है, मगर अंदर से ना ऐसी फीलिंग आती है जैसे कुछ मिसिंग है, या पावरलेसनेस की फीलिंग आती है, यार सब कुछ है बट वो अंदर से ना वो कुछ ऐसा लगता है मिसिंग है, लाइक सम ऐसे होता है कभी कि यार कभी ना ऐसे लगता है पावर मतलब आई डोंट नो द वे आउट, you know, power source is missing. Right now we are going to talk about this one relationship which can really take your life from this to this, like that. And this relationship is known as your source relationship. Your source relationship. What is source relationship? What do you think it means? जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू गिव एन एग्जाम्पल, यू नो, आई टेक एन आईफोन. मेरे पास एक आईफोन 13 प्रो मैक्स है जिसके अंदर बहुत बढ़िया कैमरा है, बहुत बढ़िया उसके अंदर एप्स है, फीचर्स है, सब कुछ बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत सुंदर है, वंडरफुल. मगर उसके अंदर बैटरी नहीं है, उसके अंदर पावर नहीं है, उसके अंदर सोर्स नहीं है, तो वो चल पाएगा? सब कुछ है, सब कुछ है जो होना चाहिए, मगर मैं यार इतना अच्छा फोन खरीदा है, लाखों रुपए खर्च के फोन खरीदा है, यार मेरी एक फोटो खींच दो, मगर उसमें पावर नहीं है, कुछ कर पाओगे उसका? यस, नो, नो ना. मैं आपको कितना भी बोलूं, अरे प्लीज करवा दो यार, प्लीज करवा दो, एक अच्छा एक कॉल करवा दो, इतना लाखों रुपए का फोन खरीदा हुआ है, उसमें पावर नहीं है, कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना? ऐसी आपने देखा होगा कभी कभार ना, इंसानों की लाइफ होती है, सब कुछ है, मास्टर्स करी हुई है, अच्छी, यू नो, बहुत अच्छी फैमिली से भी है, हेल्थ भी सही है, दिमाग भी सही है, रैशनल डिसीजंस भी लेते हैं, सब कुछ है, मगर लाइफ में ना कुछ मिसिंग है. मतलब जो जैसे होता नहीं है, कुछ करना है बट समथिंग इज मिसिंग. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट रिलेशनशिप ऑफ आवर लाइफ, द सोर्स रिलेशनशिप. कहते हैं ना, आपके अंदर वो पावर डालने वाला, अगर आपने उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया ना, आप जो करना चाहो इज पॉसिबल फॉर यू. एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू. डू यू नो व्हाट दैट रिलेशनशिप इज इन योर लाइफ? कौन सा रिलेशनशिप है आपका वो लाइफ में आपकी? कभी सोचा है? So your source relationship, so as a human being, आपके सोर्स कौन है? दो इंसान जिसकी वजह से आप इस धरती पे आए, आपके बायोलॉजिकल मम्मी और पापा. बायोलॉजिकल, ठीक है, नॉट कभी कभार किसी के और भी आ जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं. बायोलॉजिकली आप जिसकी वजह से इस धरती पे आए, नॉट फ्रेंड्स, नॉट योर फ्रेंड्स, नो, they're not your source. सोर्स होता है जिसकी वजह से, जैसे यू नो, व्हाट्स द सोर्स ऑफ दिस? जैसे गंगा नदी का सोर्स इज गंगोत्री, है ना, यमुना नदी का सोर्स इज यमुनोत्री. आपका सोर्स जिसकी वजह से आप शुरू हुए इस धरती पे आए इज योर मदर एंड फादर, नॉट योर फ्रेंड्स. ऑब्वियसली फ्रेंड्स तो बाद में आए. And its source relationship is simply saying that the kind of relationship you have with your biological mother and your biological father will be a direct indication of the, will be a direct indication. Yeah. The way your relationship with your parents is will determine the quality of relationship with the rest of your world. अगर आज आपका अपनी मम्मी के साथ, मम्मी और पापा, अगर आपका आज अपनी मम्मी के बारे में एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरी मम्मी तो बहुत है, मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मोस्ट लाइकली आपका अपनी लाइफ में बाकी फीमेल्स के बारे में
भी ऐसा ही रिलेशनशिप होगा दैट यू नो दे आर वेरी नाइस एंड देयर फॉर मी। अगर आपकी मम्मी आपको इनफ टाइम नहीं देती है, फोन पे लगती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताती हैं, कभी आपके बारे में यू नो गलत गलत फैमिली में बोल देती हैं, आपको ऐसा लगता है मम्मी मेरा मजाक उड़ाती है, most likely आपका relationship with बाकी all the females in your life, whether they are your friends, your teachers, your colleagues, your employees, जो भी है, दोस्त, चाचा, चाची, cousin, जो भी, इसका some version of you will be having in your relationship with them, कि आप वो मेरी सुनते नहीं है। Same चीज आपके पापा के साथ। So the kind of relationship you have with your mother is more or less an indication of the relationship you will have with all the females in your life. And the kind of relationship you have with your father will be an indication of the kind of relationship you will have with the males in your life. तो अगर आपका अपने पापा के साथ ऐसा एक्सपीरियंस है कि यार मेरे पापा बहुत डांटते हैं, सुनते नहीं है, समझते नहीं है मैं जो कहना चाहती हूँ, most likely आप देखिएगा with males in your life you have an experience of वो मुझे समझते नहीं है, वो मुझे सुनते नहीं है. Just consider. ये दोनों relationships कहते हैं ना, these are such relationships which are really shaping your life. हम normally parents को, जैसे अभी किसी ने मैसेज में डाला, parents and friends, है ना, we are in a stage जहाँ पे हमें ऐसा लगता है अरे parents का क्या है यार, ठीक है, but friends, अच्छा ठीक है, बाद में शादी हो जाएगी, अच्छा husband हो गया या wife आ गई, हाँ parents, हाँ ठीक है, okay. You know, we take that relationship so much, a lot of us, for granted. हमें पता ही नहीं, और फिर no wonder हम कहते हैं यार लाइफ की बैंड क्यों बजी हुई है, इतना कुछ है, इतने अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, ट्यूशन लगा रखी है, ये है, सब कुछ है, कपड़े है, घर में एसी है, सब कुछ है, पर लाइफ में अभी भी बैंड क्यों बजी हुई है यार. लोग 60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, अभी भी लगता है यार लाइफ में कुछ मिसिंग है. इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ पा लिया, इतने अवार्ड्स पा लिए, ट्रॉफीज पा ली, अभी भी कुछ मिसिंग है, ऐसी फीलिंग होती है. That is because this source relationship plays a very, very important role. So how do you charge? Okay? So accepting and acknowledging your parents the way they are, and having gratitude of whatever they are providing you, will enable you to charge yourself with immense power. आप अगर अपने सपने तक पहुंचना चाहते हो, जो भी आपको सपना है, ऑब्वियसली उसमें आपको पावर तो चाहिए होगी, पावर नहीं होगी तो चलोगे कैसे. Accepting and acknowledging your parents the way they are and the way they are not, उनको बदलने की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे हम आपकी बात कर रहे हैं और हम आपके सपनों की बात कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही हाँ अच्छा बहुत डांटते हैं, सुनते नहीं है, ये वो, जैसे भी पेरेंट्स हैं, accepting them and acknowledging them the way they are and having gratitude कि यार जो भी मेरे को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कि चल कोई नहीं, हाँ ठीक है, आज मेरे को बहुत जोर के डांटा, मगर कम से कम मेरे पास एक घर है रहने के लिए, उसके लिए मेरे पापा का थैंक यू, है ना. हमारे घर में आज सुबह सब्जी थी खाने के लिए, नाश्ता मैंने किया, उसके लिए सब्जी खरीदने के लिए जो पैसे लगे वो मेरे पापा ने दिए, तो मेरे पापा का थैंक यू. मेरी मम्मी ने सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाया, और तो बड़ी बिजी थी, गुस्से में भी थी, मगर चलो उन्होंने मुझे नाश्ता खिलाया जिससे आज मेरा पेट भरा हुआ है, मेरी मम्मी का थैंक यू, है ना. मेरी मम्मी ने मुझे, हो सकता है कभी किसी छुट्टियों पे भी लेके गए, है ना, तो उन छुट्टियों का थैंक यू कि चलो मुझे वहां लेके गए. Whatever they are providing to you, small, big, doesn't matter, will enable you to charge yourself fully with immense power. जैसे अभी मैंने आपको वो आईफोन का एग्जांपल दिया ना, वो आईफोन में 2% बैटरी होगी ना, तो आप डर डर के काम करोगे, यार अभी बैटरी ऑफ हो जाएगी, अभी बैटरी ऑफ हो जाएगी. यही आपने उसको चार्जर से लगा रखा है धड़ाधड़, उसमें भी चार्जिंग आ रही है, आप भी मस्त यूज कर रहे हो सब चीजों के लिए जो आपको करनी है. Then you're not fearful. And then you're using YouTube also, Zoom calls also, this also, that also, everything you're doing full on. Same आपकी लाइफ में, आपके अंदर कितनी पावर है, उसी क्वांटिटी, उसी रिलेशन में तो आपके सपने सच होंगे. आप अब अगर भी 2% बैटरी पे बैठे हो और आपका सपने को लाने के लिए अगर 40% बैटरी चाहिए, तो कैसे आएगी, आप चार्ज ही नहीं हो.
उसके अंदर ये चीज आपके काम करेगी. Sooner or later you will come to know that all those friends, peer groups, जो अभी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीज पे जाना, कॉन्सर्ट्स पे जाना, है ना, झगड़े कर लेते हैं, अरे मेरे को इधर जाना है, करवा के दो यार, है ना, झगड़े कर लेते हैं. How much they are empowering you as a power source versus how much your parents can work as a turbo booster for your life. It's not about them. It's not about them at all. It's about you and your quality of life. हम नॉर्मली क्या है, पापा बोलते हैं बेटा मेरे साथ 2 मिनट बैठ जा, बात कर ले. पापा मुझे नहीं बात करनी यार, मैं वीडियो गेम खेलने जा रहा हूँ. मम्मी कहती है बेटा मेरी मदद कर दे इस चीज में. मम्मी प्लीज यार, आई डोंट वांट टू डू दिस, है ना. जस्ट सी, आई एम नॉट, आई जस्ट सी हाउ वी रिएक्ट. मम्मी का कॉल आ गया, और बताओ और कुछ काम है, हो गया, बस ठीक है. थिंक एंड सी. I've done this practice, है ना. नॉर्मली जो बातें हम अपने दोस्तों को भी नहीं बोल सकते ना, वैसी बातें हम अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं, है ना. जितने रूडली हम अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते, कभी कभार ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे शब्द हम अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं कि चलना ये क्या कर लेंगे, हमारा दोस्त चल छोड़ जाएंगे, पेरेंट्स का छोड़ के जाएंगे, है ना. नो वंडर कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की बैंड बज होती है. So my invitation to all of you is, with your father and your mother, start acknowledging them, start giving them gratitude for whatever little they've done. आप कभी सोचो यार, आप कोई काम करने जा रहे हो, है ना, आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल मैच खेलने जा रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो. आपकी मम्मी ने आपको सिर्फ इतना बोल दिया, है ना, आपके सर पे हाथ रख दिया ना, आपको बोल दिया बेटा कोई नहीं, जो होगा बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है, यू विल डू अ फंटास्टिक जॉब. उससे पहले आपके हो सकता है डर लगा था, मम्मी ने एक बार आशीर्वाद दे दिया और आपको भेज दिया, तो कैसे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे. ऐसे होता है ना. आप कोई मैच खेलने जा रहे हो, पापा ने आपको बोल दिया अरे बेटा ऑल द बेस्ट, यू विल डू वेरी गुड, तो अंदर से कैसे वो लगता है. कभी हुआ है आप में से किसी के साथ, अनुभव किया है. तो देखो ये ना एक ऐसी चीज है, इसको आप जितना ज्यादा नरिश, जितना ज्यादा नर्चर, एंड इट डजंट मैटर वेदर योर पेरेंट्स आर डेड और अलाइव. आप में से कुछ सीनियर्स के हो सकते हैं अभी पेरेंट्स इस दुनिया में भी ना हो, इट डजंट मैटर. You can start writing your gratitude for them, because the more you do it, आपकी कहते हैं ना, you will be flying on cloud 9. Your dreams will come like this, chutki, whatever your dreams are, whether it's 1,000 crore company or being some head girl or being some actor you want to be or being some, you know, job you want, whatever it is that you want, whatever it is. So yes, this is the source relationship. And yeah, so we're just going to revise this. Law of attraction is like an echo. जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो गूंज जाती है ना, जो हम कहते हैं वो ही घूम घूम के वापस आता है, चेंज नहीं होता है. कर्मा में आपने सुना होगा ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. ऐसी बातें हमने सुनी है, मगर कभी आज तक हो सकता है इस पे कॉन्शियसली ध्यान नहीं दिया. जो आप देते हो सेम आपके पास घूम के आता है, मैग्निफाइड. आप ग्रेटफुलनेस दोगे तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आप, और ग्रेटफुलनेस मतलब थैंक यू, ठीक है. आप थैंक यू वाली इमोशंस दोगे तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको और थैंक यू बोलने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. आप गुस्सा दोगे तो गुस्सा घूम के आएगा, आप नफरत दोगे तो नफरत घूम के आएगी, आप जॉय एक्साइटमेंट दोगे तो जॉय और एक्साइटमेंट घूम के आएगा. यू गेट व्हाट यू गिव, फुल स्टॉप. Universe picks up your emotions. आप कैसा फील कर रहे हैं. I cannot emphasize that enough. Okay, बहुत सारी बातें हो गई. चलो let's raise our energy. हाँ चलो इसका डेमोन्स्ट्रेशन, अपनी वीडियोस ऑन कर दो सब, हो सकता है तो साउंड भी ऑन कर दो. एवरीबडी, अभी आप जिस भी मेंटल स्टेट में हो, just stand up, खड़े हो जाओ. And yeah, and start clapping really, really loudly. Okay, just see how you're feeling right now and start clapping really, really loud.
आउट ऑफ रेजिडेंसी स्कूल के स्टूडेंट जो ग्रुप में बैठे हैं, मैं सबको देख रही हूँ. Good. Wonderful. So did you observe that when you got up and you started clapping, something in your body started to shift in terms of your, ऐसे हुआ? Like your energy started raising higher and higher. Yes? Felt, not felt? Like अभी जब आप पहले बैठे हुए थे versus ताली मारने के बाद. So see, these are some things, which you can do to raise your level. जो भी हमने feelings chart में good feeling, bad feeling की बात की, so these are some small activities which you can do to make sure that you are in the good feelings वाला feelings chart. ठीक है? Okay. Is it? I hope everybody is able to. It's not a lot of information. Everybody is with me, right? अगर बहुत सारी information हो जाएगी तो we will stop. But there is a lot more to cover. Not a lot more, but like a little bit more. ठीक है? Okay. Yes, and fake it till you make it. है ना? हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों ने आज तक ये चीज करी नहीं, है ना? आज तक कभी ऐसे क्लैप नहीं किया, आज तक कभी एक्साइटमेंट में, जॉय में, ग्रैटिट्यूड में रहे ही नहीं. तो हमें हो सकता है थोड़ा अजीब लगे कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, है ना? बट दिस इज हाउ इट वर्क्स. हमने सुना होगा अरे फेक क्यों कर रहा है यार, फेक क्यों कर रहा है, मगर ऐसे ही होता है. आप जो भी बनना चाहते हो इनिशियली जब आप करो, अगर आपको अभी नहीं हो और आप कहीं और पहुंचना चाहते हो, so you initially start faking it, right? Faking it like you are already there. You fake it and you fake it and you fake it and you fake it and you fake it until you make it. That's how it works. Initially हो सकता है कि आपको लगे यार मेरे को ऐसे ना दिल से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, दिल से नहीं आ रहा initially, पर करना शुरू करो, पहला कदम लो, एक्शन लेना शुरू करो. You will reach that place yourself. ठीक है? Practice it till you really get it. So yes. अरे वाह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. बिलीव्स. अभी तक हमने बात की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि वो आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस पे काम करता है, जो आप वाइब्रेशन देते हो वो सच हो जाती है. मगर उससे कहीं ज्यादा कहते हैं ना, पावरफुल एक चीज है आपके अंदर जिसे हम बिलीफ कहते हैं. Do you know what beliefs are? आपके कुछ बिलीफ्स होंगे. बिलीफ को हिंदी में क्या कहते हैं? बिलीफ को हिंदी में क्या कहते हैं? आई डोंट नो. बिलीफ इज आपका बिलीफ क्या है ना? आपका हर चीज के बारे में बिलीफ होता होगा. जैसे फॉर एग्जांपल बिलीफ है कि पढ़ लो नहीं तो फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, है ना? या फिर छोले भटूरे मत खाओ नहीं तो मोटे हो जाओगे, है ना? बिलीफ. आपका क्या बिलीफ है? कि बेटा सुबह, और क्या बिलीफ हो सकता है? कि बेटा इंडिया से बाहर पढ़ने चले जाओ क्योंकि हो सकता है इंडिया में उतने ऑप्शंस नहीं है. या फिर और क्या बिलीफ्स है? कोई बताएं आपके क्या क्या बिलीफ्स है? पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है, बिलीफ होता है लोगों का. और क्या बिलीफ्स है? बिलीफ्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बिलीफ्स दोनों हो सकते हैं. और क्या बिलीफ्स हो सकते हैं बताएं? Belief can be that. Belief can be even thoughts, what we think about it, that I believe in this. That's a thought of mine which I believe in it. Like? Always that is always like what I believe in, that when you cannot do good for others, don't do bad for them. That is what is my core belief. Yes, that's your belief, that do good for others. Very good. Very nice. Because if you cannot do good, please don't do bad also. Do bad, yeah. That is very nice. Very nice. हाँ, आपका बिलीफ है कि मैं अपने पेरेंट्स के पैर छूता हूँ बिफोर गोइंग टू वर्क एवरी डे. वेरी नाइस. और क्या होते हैं? जैसे कुछ लोगों का बिलीफ होता है कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अब शुगन होगा, है ना? लोगों का बिलीफ होता है कि और क्या बिलीफ होता है लोगों के? जैसे स्टीरियोटाइप्स भी कह सकते हैं, है ना? जो लोगों के बिलीफ्स रहते हैं कि बेटा अगर आप इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं लाओगे
तो आपका फ्यूचर आपको बिल्ड करने में मुश्किल आएगी. बिलीफ है ना कि आप दिन में अगर, आई होप यू अंडरस्टैंड बिलीव्स. आपका अपनी लाइफ में आपका ना हर चीज के बारे में ऑलरेडी बिलीफ है. जैसे कुछ लोगों का बिलीफ होगा कि मेरी मम्मी मेरी नहीं सुनती. मेरा बिलीफ है कि मेरे पापा मुझे ये खरीद के नहीं देने वाले हैं. मेरा बिलीफ है ना. आपका बिलीफ, आपका हो सकता है अपने दोस्तों के बारे में बिलीफ हो कि मेरा बिलीफ है कि मेरा दोस्त से जब मैं होमवर्क मांगूंगा तो वो मेरे को नहीं देगा, मेरी मदद नहीं करेगा. या बिलीफ ये भी हो सकता है कि मेरी दोस्त मेरा मदद करेगा. बिलीफ कैन बी एनीथिंग, राइट. बिलीफ इज, मेरा बिलीफ है कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती है. मेरा बिलीफ है कि मुझे, और किस एरिया में, जैसे करियर के एरिया में, कि यार करियर सेट करना तो बहुत मुश्किल चीज है यार, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, स्ट्रगल करने के बाद ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं. बिलीफ, राइट. People have lot of religious beliefs also, like वो बोलते हैं ना मानना या आस्था रखना कोई चीज में. That is, a lot of people have religious beliefs. They have their own thought processes. Yes, yes. Even day and night, morning we should do this, morning we should eat this food. That is a belief. Now evening we should not eat curd, morning we should eat curd. Related to food or working, religion, lot of things are there. It's like widespread. Yeah, that very good, very good. Yeah, that's a belief. कि शाम में दही मत खाओ, सुबह ये मत खाओ, सुबह ऐसे ऐसे खाओ. Very good, very very good. So these also I'd like to add, there's one belief that a lot of people feel कि कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ अड़चने आएंगी आएंगी. Yeah. Problems will come. Yeah. So I don't know whether to think of it in a good way or a bad way, because it can be a concern which is attracting more problems and more challenges. But then it can also be something that you're taking all the challenges in your stride. So it can be both ways, but it can be a belief system. Yeah, a belief is a belief. Now it may work positively or negatively, but a belief is a belief, right? And आपका जो belief है, देखो कुछ beliefs होते हैं जो हमने सुने सुनाए होते हैं, और कुछ beliefs होते हैं जिनको हम सच्ची मुच्ची, you know, we believe on them कि यार that is my belief. So in this law of attraction, your belief will always win as compared to your thoughts and, you know, your feelings and all of this that we're going to be talking about. Your belief will always win. That's how it is. Your belief will always win. हाँ, अब अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, मगर यही अगर वो कहते हैं ना रिस्ट्रिक्टिव या कंस्ट्रिक्टिंग बिलीफ है तो उसके हो सकता है उसके अपने रेपरकशंस भी हों. जैसे लाइक ये बिलीफ का एक एग्जांपल था, ये ना एक स्टोरी सुनाते हैं. एक ना हाथी था, छोटा हाथी था, ठीक है. वो ना छोटे हाथी को ना, मतलब इन दिस फार्म ही वाज स्टेइंग, और उसको ना भागने दौड़ने का बहुत मजा आता था. ही कुड गो आउट, यू नो, बट आसपास जो गांव वाले थे उनके घर वर तोड़ देता था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक आयरन का लिया और उसके पैर को उन्होंने ना बांध दिया, so that he doesn't go around and he is at one place only and he can't move. तो उन्होंने उसको बांध दिया एंड वो नहीं जा पाया. उसने बहुत कोशिश की, उसने अपना पैर हिलाया, उसने अपना सब कुछ किया, he could not move. उसने, मतलब उसके पैरों में चोटें भी आ गई, बट बहुत स्ट्रांगली बंधा हुआ था, तो वो नहीं कर पाया. अब उस छोटे हाथी को क्या लगा कि यार अब तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी आयरन जो ये मुझे बांध रखा है, इसी जगह पे रहना है, ऐसे ही बिताना है करके. पर वो हाथी बड़ा हो रहा था. अब छोटा सा हाथी अब बड़ा सा हाथी बन गया, और जो वहां पे वो गांव वाला था जिसने उसको बांधा हुआ था, उन्होंने उस आयरन की जगह उसको नॉर्मल एक जो नॉर्मल रस्सी रहती है उससे बांध दिया, है ना, जिसको अगर वो मतलब थोड़ा सा भी पैर आगे करता ना तो वो टूट जाती है. ही वाज फ्री टू गो. बट उसने क्या किया, क्योंकि उसने पहले इतना कोशिश कर लिया था that you know now he had given up. Now he had given up and now he was like अभी इसका कुछ नहीं हो सकता है. So now although the metal की रस्सी was no longer around him and he could have easily broken free, but mentally he thought, his belief was अब मैंने पूरी जिंदगी यहीं पे बिताना है, ऐसे ही बिताना है. So we need to understand, you know, there's a certain restriction which comes with our beliefs. Number one is we think that all our beliefs are true, right? We think that all our beliefs are true
But the good news is none of our beliefs are true. They are just a belief. They are just your belief. It's just a belief. So in order, if you want to change your life, you just have to change your beliefs. And there are certain practices to change your beliefs. देखो जो अच्छे काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उससे कंटिन्यू करो. मगर अगर आपको दिख रहा है कि यार मेरा ये वाला बिलीफ ना मुझे बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उस एरिया में, मेरे को उस एरिया में अपने सपने में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, अगर मेरा बिलीफ मुझे कह रहा है कि यार मैं नहीं कर सकता मैथ्स, नहीं कर सकता मैथ्स, तो मैं जितना भी दिमाग में पॉजिटिव फीलिंग कर लूंगी ना, मेरा बिलीफ ही जीतेगा कि मैं नहीं कर सकता मैथ्स. ठीक है. तो बिलीव्स आर नॉट मेड इन वन डे. कभी कभार कुछ दिन, महीने, साल लगते हैं, या कभी कभार कहते हैं ना कुछ झटका लगा और मेरा ब्रेन पैटर्न में वो बिलीव करता है. So it takes a shift in your brain pattern within a few seconds, but all this begins with your willingness to transform that belief. अगर आप किसी उसको बदलने के लिए तैयार हो तो ही उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, है ना. मेरे बोलने से या आपकी मम्मी के बोलने से कि ले बेटा ऐसे मत सोचा कर, ऐसे मत सोचा कर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आप तैयार. So if you have belief on whatever we've learned today and you want to practice it, make it a way of living your life. I really suggest you to strengthen the belief of gratitude in your life. And gratitude is a way of life. It is not just कि किसी ने मेरे लिए कुछ काम किया तो मैंने थैंक यू बोल दिया, या किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तो मैंने थैंक यू बोल दिया. आपके जो भी डिजायरेबल रिजल्ट्स हैं, the easiest way to attract them in your life is through the practice of gratitude. So you could start with कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ. आप अपने मम्मी पापा का थैंक यू करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना, कि आपको उन्होंने स्कूल भेजा, आपके लिए यूनिफॉर्म खरीदी, आपके लिए नोटबुक्स खरीदी, आपके लिए पेन खरीदा, आपको घर दिया रहने के लिए, आपको मील्स प्रोवाइड किए. आप उसके लिए थैंक यू शुरू कर सकते हो. आप अपने टीचर्स का थैंक यू कर सकते हो, है ना, कि वो समय निकालते हैं. उन्होंने न जाने कितने साल की पढ़ाइयाँ की, कितने एग्जाम्स दिए, कितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, ताकि वो एलिजिबल बन सके आपको पढ़ाने के लिए, है ना. आपके लिए न जाने कितने सालों की उन्होंने रिसर्चेस करी ताकि वो बुक्स बना सके जिससे आज आप पढ़ रहे हो, है ना. उसकी एडिटिंग करना, उसको आपके समझने लायक बनाना, सब चीजें, आपकी एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपके फूड जो आप खाना खा रहे हो, आपका जिस लैपटॉप से या मोबाइल से आज आप यहाँ पे जुड़े हुए हो, ना, उसके लिए पैसे लगे थे. न जाने किस आईटी कंपनी ने कितनी रिसर्चेस करी होंगी ताकि जाके ये चीज बन पाई कि आप घर बैठे बैठे यहाँ पे किसी और शहर पे किसी कॉल पे बैठे हो और आप बातें कर पा रहे हो, है ना. तो इस मोबाइल का थैंक यू, इस लैपटॉप का थैंक यू, इस वाईफाई का थैंक यू करना शुरू कर सकते हो आप, कि यार पता नहीं एक ऐसी चीज है जो मुझे दिख भी नहीं रही अपनी आंखों से, पता नहीं इतने 1000 रुपए का मैं बिल देती हूँ, पर सैटेलाइट्स चल रही है बाहर की, मैं दिल्ली में बैठे बैठे यूएसए में बात कर सकती हूँ एट अ क्लिक ऑफ अ बटन. जो पढ़ना चाहूँ पढ़ सकती हूँ ऑल अक्रॉस द इंटरनेट, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. वाईफाई का थैंक यू, है ना, मेरे मोबाइल डाटा का थैंक यू. तो दीज आर सम प्रैक्टिसेस. आज आप जहाँ बैठे हो, जो कपड़े पहने, कपड़ों का थैंक यू, है ना. आंखें काम कर रही हैं, आप देख पा रहे हो इस स्क्रीन को, मुझे इसका थैंक यू. जिन मैम की वजह से आज आप इस क्लास में बैठे हो, जो सचमुच चाहती हैं कि आपका भला हो, मैम का थैंक यू, है ना. जिस स्कूल में बैठे हो, जो आपको स्कूल वाली चीजों सिखाई रहे हैं, मगर साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि यार एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे अपने आप को डेवलप करना है, इवॉल्व करना है, उस स्कूल का थैंक यू, है ना. तो इस तरीके से थैंक यू की प्रैक्टिस, अगर आप सचमुच गुड फीलिंग्स के अंदर मास्टरी करना चाहते हो, जो कि आपको आपके सपनों की लाइफ में लेके जाएगा इवेंचुअली, समय लगेगा. इट मे टेक सम टाइम एंड प्रैक्टिस टू स्ट्रेंथन योर पावरफुल बिलीव्स. So I'll handhold you. We'll meet for a month. We'll do that and we will transform your life forever. My only request to you will be just do the assignments. मेरे को सुनने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो फर्क पड़ेगा मेरे को सुनने में. Just do the assignments and you will enter the world of happiness, love, gratitude, joy, excitement, celebrations. It's going to be, कहते हैं ना, आप चाहो तो आप अपनी अभी एक सेल्फी भी खींच सकते हो
कि आप अभी किस तरह के इंसान हो और इन 30 दिनों के बाद आप कैसे इंसान बनोगे. It's going to be wonderful. But हाँ, you have to do the assignments. जैसे आज हमने assignments की, मेरी आवाज आ रही है? It's coming. Okay, so Irfan, maybe there's something on your end. You could check. आप join audio पे नहीं click किया, कर लीजिए. Yes. So yes, so this is a way of life that we will be practicing. So we have 12 minutes. So I'll try to cover these laws. मैं इनको अभी थोड़ा overview में बात करूंगी कि जो laws यहाँ पे exist करते हैं, जिसके अंदर आप और मैं fall करते हैं, हम माने ना माने. Law of attraction के बारे में हमने अभी तक बात की, which said whatever you say you will get. The universe and is watching and listening to you all the time. आपने सुना होगा ना, दीवारों के भी कान होते हैं. डायलॉग्स हमने बहुत सुने, दीवारों की भी कान होते हैं, मगर एक्चुअली में इट्स टॉकिंग अबाउट दिस लॉ ओनली कि आप जो बोल रहे हो वो घूम के आपके पास आने वाला है. आप जो सोच, आपको लगता है मम्मी को नहीं पता चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, मैं कर लूंगा. अरे उस क्लाइंट को नहीं पता चलेगा, अरे कोई नहीं, चल मैं थोड़ा सा उसके साथ चीटिंग कर लेता हूँ, उसे नहीं पता चलेगा. आपको पता ही नहीं है आप जो दे रहे हो. आप अगर चीटिंग कर रहे हो, आपकी लाइफ में कैसे वो चीटिंग घूम के आएगी. आप किसी को झूठ बोल रहे हो, आपकी लाइफ में वो कैसे झूठ घूम के आएगा. एंड यू विल नॉट, एंड मल्टीप्लाई होके आएगा. आप किसी के साथ ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो ग्रैटिट्यूड घूम के आएगा. सेम, ठीक है, ये अभी हमने बात की. बाकी आप सब लोग आज सीक्रेट मूवी देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट होता है लॉ ऑफ फोकस. लॉ ऑफ फोकस कहता है कि जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है. जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है. We'll play this game. I want you all to close your eyes for a second. I will tell you a color. Whatever color I'll tell you, you find it. As soon as you find it, you write in the chat. Okay, close your eyes. Open your eyes and find the color green. Green color. Open your eyes and find the color green. As soon as you find it, just write down found. Yeah. मिल गया? बहुत अच्छे. Found. Okay, very good. Let's do it again. Close your eyes. And now when you find the color yellow. Find the color yellow. Yeah. Found? मैं भी ढूंढने लग गई थी. Yes. Okay. One last time. Okay. Find the color black. Find the color black. Did you find? Yes. Did you see? कि ये सारी चीजें आपके आसपास पहले भी पड़ी थी. पहले भी तो ये सब चीजें आसपास ही थी, मगर इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, है ना. So the law of focus simply works upon. आप में से किस किस ने ऑब्जर्व किया कि जब मैंने बोला ग्रीन कलर तो आपका दिमाग इमीडिएटली सब कुछ ग्रीन 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 ढूंढने लग गया था. It's like only green things started to pop up and every other color went like पीछे थोड़ा छुप छुप गया था, right? This is how the law of focus works. Whatever you put your focus on immediately becomes much more significant and prominent in your life. Similarly, इसको आप अपनी लाइफ में भी यूज करते हो. अगर आप प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाएंगी. सोल्यूशन के ऊपर फोकस करोगे तो सोल्यूशन बड़े हो जाएंगे. That's आपने कुछ लोग देखा होगा ना, कहते हैं यार हेयर फॉल इज कमिंग, यार हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है. हेयर फॉल विल बिकम मोर सिग्निफिकेंट. आप सोल्यूशन के बारे में बात करोगे कि यार मेरे बालों में तो आज मैंने देखा एक बाल और आ रखा था. ओह नाइस. ओह मेरे बाल कितने काले और घने हो गए हैं. ओह आई लव इट. आप सोल्यूशन के बारे में बात करोगे, इट विल बिकम सिग्निफिकेंट. अरे आज मैंने एड देखी यार, मजा आ गया. ओह हेयर हैव बिकम सो हेल्दी, इतनी ऑर्गेनिक चीजें आने लग गई यार आजकल मार्केट में. दैट विल बिकम मोर सिग्निफिकेंट. दैट्स हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट, अभी मैं इसमें ज्यादा नहीं बात करूंगी बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम. वी आर अबाउट टू कंप्लीट. सो लॉ ऑफ रिसीविंग इज बी गुड रिसीवर्स. The more you are receiving things with gratitude, the more it will multiply.
हम नॉर्मली क्या कहते हैं रिसीविंग पे, अरे ऐसे मत करो ना, कोई हमें तोहफा देता है, जैसे मासी घर पे आई उन्होंने लिफाफा दिया, अरे इसकी क्या जरूरत थी, हमें नहीं चाहिए, ओ हो। मगर एक्चुअल में दिल क्या कह रहा होता है, अरे प्लीज दे दो, मुझे अच्छा लगता है सगन लेना, या मुझे अच्छा लगता है गिफ्ट्स लेना. सो इन दिस लॉ अभी आप सिर्फ जान लीजिए, बी गुड रिसीवर्स. The more you are receiving things with gratitude, it will multiply. Compliments, gifts, whatever good things are coming. Laws of abundance. Your attitude of either abundance or scarcity towards money, love and time. आपको अगर abundance के अंदर से feeling है कि भाई बहुत कुछ है, तो आपको बहुत कुछ मिला जाएगा. अगर आपके अंदर से attitude, feelings है कि यार बहुत कम है यार, scarce, I never have enough time यार, I never have enough time, you will never have enough time. आपका अगर attitude है यार, I never have enough money यार, you will never have money. This is your attitude. ठीक है. आप भले अगर आपके मार्क्स है यार, I never have enough marks, you will not have. अगर आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, I have lot of marks, अरे मेरे को जितने मार्क्स चाहिए हमेशा आ जाते हैं. ये सेम चीज आप हर चीज में, अपने पेरेंट्स के साथ प्यार में, टाइम में, अपॉर्चुनिटीज में, आपकी को करिकुलर्स में, सेम योर एटीट्यूड अप्लाइज. लॉ ऑफ सेल्फ लव, one of the most important laws. अभी I'm sorry I'm rushing through this. Normally इसकी एक चीज में कि हम 2 दिन की वर्कशॉप रखते हैं, you know, lot of people. But अभी हम इसको थोड़ा क्रक्स में रखेंगे so that we complete on time. Law of self-love is one of the most important laws there is, which is accepting myself and loving myself the way I am and the way I am not. जैसी हूँ, कम हूँ, ज्यादा हूँ, I love myself. मोटी हूँ या पतली हूँ या छोटी हूँ या जैसी भी हूँ, दोस्त है नहीं है, जैसी भी हूँ, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करना है यार. ठीक है, we will reach there also, जो हमारे सपने हैं, we will reach there. मगर अभी जैसी हूँ, I love myself. वरना क्या होता है हमेशा, यार ये नहीं करा यार, ये भी करना था यार, देख इतना वेट पुट ऑन हो गया, कम करना था यार, देख आज फिर से ऐसे कर दिया, ये गलत कर दिया है ना. अपने अंदर गलतियां ढूंढते रहते हैं, या ऐसे नहीं करना चाहिए था. और जब हम सेल्फ लव नहीं करते ना, तो अपने आप को बहुत छोटा बना लेते हैं हम. तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यार सबसे पहले बी इन लव विद योरसेल्फ, जैसे हो, एक्सेप्ट योरसेल्फ. मैं पर्सनली अभी इसके ऊपर नहीं बात करूंगी, ये अपने आप में 1 महीने की जर्नी है सेल्फ लव की. बट बी इन लव विद योरसेल्फ, जैसे भी. ठीक है. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड. इट सेज इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, you will have abundance. If you are not grateful for what you have, even what you have will be taken away from you. अभी आप सुन लीजिए, इसके बारे में डिस्कशन हम आराम से करेंगे. लॉ ऑफ चॉइस, या तो आप चुन लो आपको अपनी लाइफ कैसी बनानी है, वरना दुनिया या यूनिवर्स बना देगी आपकी लाइफ कैसे बनेगी. नॉर्मली लोग सेकंड टाइप से जीते हैं. या तो आप चूज कर लो आपको अपनी लाइफ किस टर्म पे जीनी है, कैसी जीनी है, otherwise the universe will choose for you. That's the law. Next is law of envy. Envy मतलब jealousy जिसे कहते हैं. It says अगर आप किसी भी चीज से jealous हैं, if you are jealous of anything, of anyone, you are pushing that factor away from your life. आप जिस भी चीज से jealous हैं आपकी लाइफ में, for example आप एग्जाम में 90 मार्क्स चाहते हैं, अभी आपके 70 आ रहे हैं, और आपकी कोई फ्रेंड है जिसके 90 आ रहे हैं, और आपने जब उसकी मार्कशीट देखी तो आपके अंदर जेलसी आ गई, यार इसकी कैसी 90 आ गई, मेरे नहीं आए. अगर आप किसी चीज के जेलस होंगे, आपकी लाइफ में वो चीज कभी नहीं आएगी. इफ यू आर जेलस कि उसकी क्यों आ गए, आपकी लाइफ में वो 90 मार्क्स कभी नहीं आएगी. अगर आप जेलस हो, लाइक यू नो यू सी सम एक्टर एंड यू आर लाइक, यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है यार, सब कुछ कितना अच्छा है, उसकी बाल कितने अच्छे हैं, उसकी स्किन कितनी अच्छी है, उसका करियर कितना अच्छा है, यू आर जेलस फ्रॉम देम. आपकी लाइफ में वो चीज कभी नहीं आई. जेलस है आप कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ देखो मैं क्या जी रही हूँ. आपकी लाइफ में वो फेम, वो करियर, वो पैसे, वो बॉडी कभी नहीं आई. That's how this law works.
इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम आराम से करेंगे, बट अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेलिब्रेशन. Celebrate each and every smallest or big achievement of yours. पार्टी करो, छोटी चीजें भी करिए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आज चाय बनाई अपने लिए या घर के लिए, आप नॉर्मली नहीं बनाते, सेलिब्रेट इट. आपने हो सकता है कोई मॉक टेस्ट दिया, आपके उसके अंदर पहले 50 आए थे, इस बार 51 या 51 55 मार्क्स आए, आपने पहले से एक नंबर बेटर किया, सेलिब्रेट इट. छोटी से छोटी चीजें सेलिब्रेट करो. जितना ज्यादा आप उसको सेलिब्रेट करोगे, give a toffee, clap, start dancing, the more you celebrate, the more of that will start coming in your life. The more you celebrate, more and more celebrations will come into your life. That's how it works. Next, it talks about, now this all we will cover up later. I don't think we have the time for that. ये how to manifest के 5 steps होते हैं, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बारे में हम आराम से. So we are starting with this 30-day journey in which we will learn how to manifest. है ना, अभी हमने आज जो भी बात की, it was like an introduction to this world. So yes, any questions anyone has, anything you want to share, if you are excited about this journey, about your dreams, and yes, please ask, share. Yes. मुझे लगता, अच्छा, एंड आपको माना आप सब लोग स्कूल की तरफ से आए हैं एंड आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, यू नो पेरेंट्स हैं, एक चीज मैं आपको श्योर कर सकती हूँ, देखो आज आप इधर की तरफ से आए हैं, कल हो सकता है आपको कोई रिश्तेदार आपको रेकमेंड करता. आपकी लाइफ में आपके जो सपने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इंट्रोड्यूस्ड यू, अगर आपको इस 2 घंटे में अपनी लाइफ के लिए लगा कि यार यू नो आई वांट टू टेक माय लाइफ टू अनदर लेवल, यार मेरा ये सपना है जिसके ऊपर मैं सचमुच काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बी रेडी, है ना, बी रेडी फॉर दिस वंडरफुल. अभी हमने सिर्फ सुना, आज के दिन में ज्यादा हमने असाइनमेंट नहीं करी, 3 असाइनमेंट्स मिली है. अगले जो परसों से हम लोग मिलेंगे सुबह 8:15 to 9 AM, उसमें हमें डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी. लाइक आज आपने ये करना है, आज आपने ये करना है, तो डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी करने को. So yes, any question, any feedback आपको आज, so let's take it, आपने आज के सेशन से अपने आप के लिए 3 चीजें क्या सीखी? Let's take it like that. Any 3 things or any 1 thing that you are taking away from today's session before we complete? Gratitude. Wonderful. That is something really good, and I think that is something we are missing, because always as humans we have a complaining mode. Yeah. And even when a person is doing one small good thing, also we do not pay and say it is a common thing. And I think when people are doing mistakes, we make a chain of those mistakes and add up those things, and we're ready for, so that attitude, the positive and the negative attitude, that needs to be changed. So for that thing, I think the gratitude, and for that, I think a lot of patience is required. And that is, I think, must in our field. Each and every one who is connected with us, whether it is 4th class or drive, anybody, the team, I'm not going to say every human being, or as you said, anything, even what we are touching on, even a laptops, a person who are known, unknown, anything around the universe which is giving us something, that gratitude needs to be given. I know that I had attended few sessions, but it was like always incomplete. And one important thing, what I was listening to you since long, that okay, 30 days we'll do, 20 days it will be do, but actually who really will follow in their life for their lifetime and carry forward it to others, that we need to learn the most. Because it is always like a temporary mode. The things are on temporary mode. We are not trying to work on regularly basis. If we really want to improve our life, I think we need to carry on this for a long time. And yes, I believe what you said, self-care, self-love, and that we have been talking with our own teachers also, that we need to do that. So whenever they dress up and all, we appreciate them and do it. So self-care, self-love,
And of course, the gratitude. I think the gratitude is one of the most. I think I should write in the bold letters that that's the must. Thank you. So wonderful to hear from you. And I personally feel that if the trustees, the principals of a school have this mindset, then it flows down. And it all comes down to see. मैंने जैसे होता है ना हमारी लाइफ में when we start to see the magics of gratitude, we personally want to मुझे बहुत फायदे हो रहे हैं चलो तुम भी करो, and I'm glad. Thank you. Firstly, thank you so much for having this. And as you very wonderfully said, सुनना एक चीज होती है, but इसको अपना way of life बनाना is where it all comes in. So to take out the time and to fix it in a structure is very important. And I'm so glad कि हम लोगों ने homeroom period अब इसके लिए fix कर दिया है कि चलो पता है कि सुबह इतने से इतने बजे हम इसी के related practice करेंगे. So thank you. Wonderful. Thank you so much. So in this connection, the gratitude goes to even to Garima ma'am for doing this and putting us into hand holding, doing a hand holding and taking to these kind of things. Yes. Because normally, if you look at the other school structures and all, it's totally different. Like we are there only for academic or co-curricular, but to take care of others, again, like it's a kind of a thing which is very difficult for people to do or to think about others. Yes. So even to think about others, like this gesture is very, very difficult, which I think Garima ma'am always does that. So the first thing I start with gratitude to her for this session. Yes, absolutely. Thank you. Thank you so much, Garima. Thank you. Yes. Who else would like to share? What are your takeaways? Okay, some have written in the chat to always be joyful, always be positive, believe in yourself. Raina ji has written self-love, love, celebration, and gratitude. Bahut achhe. Rashwinder ji has written consideration, empathy, self-love, say what you feel, be truthful about your feelings for yourself. Okay, very nice. ठीक है, ये पता ये सब ऐसी चीजें जो हम लोगों ने ना हो सकता है पहले भी कहीं पे सुनी है ना, हम में से सब लोगों ने कहते हैं बेटा खुश रहा करो, बेटा ऐसे रहा करो, हमने सुना है कि बेटा रहा करो, मगर अल्टीमेटली जब हम लोग ब्रेकडाउन में फंसते हैं तो ये सब भूल जाते हैं, है ना. जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो ये सब बैक सीट ले लेता है और हमें लगता है भाई अभी इसको कन्फ्रंट करो. उस टाइम पे जो भी रिएक्शन आ रहा है, डर आ रहा है, चिंता आ रही है, गुस्सा आ रहा है, दैट ओवरपावर्स. सो जो हम जर्नी परसों से शुरू करने वाले हैं सुबह, दैट विल बी अ प्रैक्टिकल जर्नी. उसके प्री रिक्विजिट्स में मैं आपको बोलूंगी आप प्लीज एक नोटबुक, एक पेन अपने पास हैंडी रखिएगा जो कि पर्टिकुलरली इसी की असाइनमेंट से रिलेटेड रहेगी, ठीक है. एंड आज की जो असाइनमेंट है आप प्लीज उसे परसों से पहले अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. विच इज नंबर 1, वॉच द सीक्रेट मूवी. आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी. नंबर 2, मेक योर ड्रीम लिस्ट. आपके सपने क्या है उसकी लिस्ट बनाना शुरू कीजिए, जितना भी समझ में आता है लिखिए उसको. एंड नंबर 3 जो हमने एक्सपेरिमेंट की बात की, जो वाटर एक्सपेरिमेंट है, उबले हुए चावल वाला. So these 3 things we can start upon. We have today, we have tomorrow, and then Parso we meet. So yes, any other questions? Otherwise we can complete. Garima ji, I think we can complete. I think before we close, I would like to formally, thank Annie, who has so beautifully and powerfully, Yes. enthusiastically kept us all in rapt attention with things which are very basic, which we may feel कि हाँ सुना हुआ है, हाँ पता है, ये सब तो मतलब सभी बोलते हैं, क्या बड़ी बात है. बट वो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों से बड़ी बात कैसे होती है, छोटी छोटी बातों से ड्रीम्स कैसे बनते हैं, छोटी छोटी बातों से लाइफ कैसे हमारे सामने हैप्पी जॉयफुल रहती है. I think the connections that you have made very powerfully and in your own unique style has been really, really amazing. I would definitely like to, share with you all my intention of doing this program. So, of course, Annie has been doing this work for years. And I came to know about it from my sister. Many of you know her. Her name's Shubhi. She's been to school, I think once or twice maybe, but she was really, really keen, and she has introduced this workshop to many, many people. Many times she's told me, but
somehow I couldn't do it. And the people who have done it in my family, you know, they have really benefited in a big, big way, whether it's related to building self-esteem, whether it is related to building good health, prosperity, sorting out money, financial issues, working towards resolving their family disputes. So in a very, very short period of time, they have really built milestones of testimonials through this work that Annie has put together today for us. And I'm really glad that I am getting to do this with you all, the team presidency, the presidency family. On Wednesday, our students, our alumni will also be joining us. So let's really build this chain reaction of happiness and empowerment by sharing this particular workshop with our families and our friends. Bring in your children, whoever is at home, they can join it on Zoom. From today, we have also put this as a recording on our Presidency School YouTube channel. So the introduction is going to be there, and every day as we go along, it will be posted. And yeah, I think who better than Annie? She's 24 years old, dynamic, enthusiastic, full of life, and I think her rendition has been absolutely fantastic. So big applause to you, Annie. And we're really, really grateful to have you. And thanks to the admin team who so quickly put together the logistics of this all, that we can, attend together from the MPH. So let's make the most of these days. Let's have assignments rolled out. So we are the first examples. When we do our assignments, then we can influence our students also to, watch the recap on YouTube channel, do our assignments, and show up at sharp on time at 8:20 in the MPH from Wednesday onwards. And I think carry a pen, paper, notebooks, water bottles, very important to us is a long time. Some of us were lucky to have our water bottles right with us, some were not. So please, Wednesday onwards, let's be prepared. And I'm very excited to be embarking on this journey with you all and creating milestones in our life. Thank you all. Thank you. Thank you so much, very much. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you, everyone. Thank you, Annie. Thank you, Have a everybody. great